What are the common mistakes which founders normally make when they start off? Thinking their product or service is good, तो क्योंकि शार्क टैंक भी बिजनेसेस सेटअप करता है. Is it a sham or is it genuinely helping the founders, or you can say the ecosystem of entrepreneur? What are the unspoken emotional and psychological challenges startup founder generally faces? 90% founders lose their health. इंडिया में जो स्टार्टअप फेल होता है वो ये मानता ही नहीं कि मुझसे क्या क्या गलती हुई. वो क्या मानता है पता है? उसने ऐसा कर दिया इसलिए फेल हो गया, उसने ऐसा कर दिया इसलिए फेल हो गया, वो बिजनेस है इसलिए फेल हो गया. तू गधा था इसलिए तू फेल हो गया. नौकरी वाला माइंडसेट मैंने देखा है कि लोगों को नौकरी छोड़ने का मन करता है. थोड़ा बॉस ने अगर गाली वाली दे दिया तो कहता है कि अब मैं हो गया ना, इट्स टू मच, और मैं छोड़ के जा रहा हूँ. एंड उसके बाद फिर वो अगले हफ्ते फिर से जाते हैं. और पैसा बहुत मेहनत से कमता है. कैसे लाख रुपए भी किसी को दे दो आप ना, जिसको आपको पता ना हो बिजनेस कैसा चलेगा, कितना दुख लगता है अगर वो बिजनेस को डुबा दे. ठीक है. So today's podcast is a very special podcast. If you are a business owner, an entrepreneur, or someone who has decided to start a venture but does not know where exactly to go, here is the podcast which will get you the ABC or the fundamentals of entrepreneurship and business. So without any further ado, let me welcome someone who has not just started his own business, but is also helping businesses create their own systems. He has invested already in 25 companies. His target is to create 100 fully functional companies in India. He is also the founder of HBF Direct, and he has recently created a venture called the Founders Club India, which primarily focuses on the entrepreneurs and the business owners, primarily the ecosystem of the startups. What exactly do you mean by building 100 companies? Because ये मेरे को थोड़ा सा इंट्रीगिंग लग रहा है. बिकॉज आपका प्लान क्या, करना क्या चाहते हो आप? So I started a company 2018 में when I started HBF Direct Limited. Plan was very clear. We launched a mission 100 entrepreneurs. So not companies, actually I want to create a team of 100 entrepreneurs. Entrepreneurs, ठीक है. So 100 entrepreneurs, obviously 100 companies you can call it. So we changed the target of कि यार 100 entrepreneurs को हमें भी create करना है. So we have to first create a ecosystem कि मेरे लिए सब चीज़ें easy होती चली जाए. It took around 4 years to create a ecosystem. Ecosystem in the sense कि creating those kind of companies जो दूसरी companies को support करे. So we created a B2B support companies. B2B example के लिए हमने एक Taiki Media नाम से एक company develop की which do events and all. Then हमने एक Indus Experts नाम से company बनाई थी जिसमें सारे experts हैं like professionals and all. We have a IT company, we have a fundraising company. So these type of companies we have. We build all these companies and hire directors from outside, CEOs, and they are running that companies. To building those companies, हम लोगों ने funds तो थे नहीं उतने ज़्यादा, so I took a funds from lot of my friends and family, and हम सब ने मिला के उसमें funds collectively डाले थे. सब में like 1 crore to 2 crore rupees का fund डाला था, which you can call a seed funding or you can call a retail funding or whatsoever. Company को day one से public बनाया. Day one से? Yeah, day one से. और most of the companies are public from day one. जो कंपनीज के हमें ये था कि इनमें फंडिंग नहीं मिल सकती, सो जो स्टार्टअप कैटेगरी कंपनीज नहीं है, सो सबको डे वन से पब्लिक किया. सो दैट पब्लिक करने से हमारे शेयर डीमेट में आए. हमने फ्रेंड्स फैमिली से बात करी, हो गया 10-10 रुपया शेयर है, तुम भी ले लो, सब ले लो बराबर. लेते हैं रिस्क वैसे कंपनीज के ऊपर? बिकॉज कल्चर तो सिर्फ FD, SIP, रियल एस्टेट. नई कंपनी से कौन पैसा लगाएगा? कैसे भरोसा आता है? कैसे कन्विंस कैसे करते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली को पैसा लगाने? थोड़ा मुश्किल है. रिटर्न आता है क्या? वो भी थोड़ा मुश्किल है. आगे अभी तक आना है? अभी नहीं आता है. इतना जल्दी से रिटर्न्स नहीं आते. बिजनेसेस टेक टाइम. 7-8 ईयर का अगर नहीं है. जो स्टार्ट किया था तो मैं सबको बोल रहा था कि देखो 4-5 साल में सब चीज़ें रहेंगी, बट नहीं, 5 साल नहीं लगता, 7-8 साल लाइक वेरी नॉर्मल टाइम, जब हमें ये रियलाइज होना शुरू होता है कि अब तो ठीक है चीज़ें चल रही है. दूसरा, बिजनेस इज अ गेम ऑफ कंटिन्यूस growth, continuous, you can say like a long term, not continuous growth, persistency. So like we are doing same and we are failing, but we are just doing better way, and we have to make sure कि 2-3 बार तो चीज़ें ख़त्म हो ही जाएंगी पूरे प्रोसेस में, तब कहीं जाके पूरा प्रॉपर एक टीम बन के आता है.
then we have to work on that. So that's the reason when I start my businesses, जो ये ecosystem वाले business थे, ये बहुत ही कम पैसे से शुरू हो सकते थे. एक consulting firm को start करने में कितना ही पैसा लगता है, एक IT firm के लिए कितना पैसा लगेगा, 4 लोग ले लो, 2 लोग ले लो, तो भी IT firm बोल ही सकते हो. But we started with a good funds, every company. The reason is कि बड़ा clear था कि अगर fail भी होंगे तो दोबारा start कर पाएंगे. तो हाउ डू यू चूज यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे सो आपका जो मेजर सेटअप है इज इट्स इन नॉर्थ ऑफ इंडिया राइट, और यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस. अभी नहीं, हैदराबाद वी आर स्टार्टिंग, बट आपका मेजर चंक इज नॉर्थ. अभी नॉर्थ है, बट नाउ फोकस इन हैदराबाद एंड मुंबई. बट आपने वैसे पूरा इंडिया का लेंथ एंड ब्रेथ पूरा घूम चुका है राइट. यू हैव मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स. तो आई नो आप यहाँ पे रहते हो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर डूइंग, बट व्हाट एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन पूछूंगा. The founders in the north, the founders in the south, the founders in the west, and the founders in the east, who had the most fire in the belly? Okay, so it's not hard question. It's very easy. So yeah, North Indians have like more of true businessmen. True businessmen. No, you can't say like they are not a startup guys. They are a businessmen. So there's a difference. Businessman is a person who is ready to earn money. टिपिकल थिंग्स, कम नॉलेज है पर काम कर रहा है लगातार, वो वाली कैटेगरी बेल्ट इज है इन नॉट लाइक दिल्ली एनसीआर एंड ऑल. बट व्हेन यू गो साउथ, या और यू कैन से नॉट साउथ एग्जैक्टली लाइक बैंगलोर और मे बी पुणे, यू विल फाइंड, बैंगलोर में तो बहुत ज़्यादा है, यू विल फाइंड लाइक अ पर्सन हु इज जस्ट वर्किंग. मोस्टली मुझे तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट ज़्यादा करते हैं ये लोग, एंड इन्वेस्टर्स का भी, एंड मोस्ट ऑफ द फंड्स गोज देयर ऑल्सो. तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का नॉलेज है उसको. लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो अभी तक बोलने मुझे हेजिटेट होता है कि एबिटा और पैट और सब में मेरी कन्फ्यूजन आज भी क्लियर नहीं हो पाती कई बार जब मॉडल्स चेंज हो जाते हैं. बट दे कैन टेल यू, वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी बता देगा कि फंडिंग की कितने तरीके हैं, कितनी तरह से हैं. सो वो सब कुछ दे कैन एक्सप्लेन यू. सो दे आर मोर ओवर लाइक स्टार्टअप्स यू कैन कॉल इट, कि चलेगा तो पूरा वो इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंट पे पूरा बिलीव करेंगे. फेलियर रेशियो भी इसीलिए ज़्यादा है, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दिल्ली में नहीं, दिल्ली में भी है, बट स्टार्टअप फेलियर रेशियो इज मोर इन बैंगलोर. और लाइक अब मुंबई जाओगे, मुंबई में यू विल फाइंड अ मिड सेगमेंट का है, मतलब थोड़ा स्टार्टअप भी है, थोड़ा फाइनेंशियल आपकी तरफ से भी है, थोड़ा पैसे का सपोर्ट है. गुजरात का काफ़ी इन्फ्लुएंस है. गुजरात का पर्सन इज लाइक मोर कम्युनिटी बेस्ड. मुंबई में यू विल फाइंड इंटायर इंडियाज अप्रोच देयर, लाइक हेड ऑफिस है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर वो सही है, now I have a chance to go head offices and just simply ask the company कि ये प्रोडक्ट मेरे को आपके यहाँ पे पूरे उसमें डिलीवर करना है ब्रांचेस में. इट विल बी मोर ईजी फॉर मी. सो इफ आई एम लिविंग इन मुंबई, सो वहाँ एडवांटेज मेरे पास ज़्यादा होती है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए. दिल्ली में भी है बट मुंबई इज़ मच बेटर. सो मुंबई में क्या होता है, मुंबई में अगर थोड़ा सा भी बुज्जू दिमाग है, थोड़ा सा भी स्मार्ट है और थोड़ा स्टार्टअप टेक वाला भी है स्टाइल, सो यू आर मोर सक्सेसफुल. And the best place to those people are Gujaratis. If you are Gujarati and local there, the best places for Gujaratis like in start their business in Gujarat and grow there and then go to India. But if they're non-Gujarati, it's very hard to cover the Gujarati market. So Gujaratis are more focused on like to support each other. It's very cultural because उनका language बहुत ज़्यादा influence जैसे आपने देखा होगा like I seen with the Jain families also when they do business they simply like कि okay अच्छा ये मुझे ये बता क्या है, फिर वो ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कोई है क्या जो ये वाला काम करता है, उसी से करा होगा ये काम. ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी तक खरीदने के लिए वो कि कार की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो भी ग्रुप वाले से ही ले. सो दे सपोर्ट लाइक कम्युनिटीज, दे सपोर्ट लाइक दैट कि हम तो अपनी कम्युनिटी में करेंगे, तो इट्स वेरी ईजी for these people. But when you go east, बहुत ज़्यादा ठंडा है. ठंडा in the sense, how to tell you, मेरी ज़रूरतें ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. मतलब कि मैं वहाँ पे रह रहा है जो आदमी, वो ऐसा सोचता है कि ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा कमाने की, ज़रूरत ही नहीं है इतना कुछ करने की. Is it because of the city's cost of living? और is it कि गवर्नमेंट ऐसी है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी? जैसे अब दिल्ली का आदमी देखो ना, पंजाबीज और लाइक कि पंजाबी ज़्यादा है मतलब दिल्ली में, तो वो कल्चर हमने भी अडॉप्ट किया बहुत ज़्यादा. तो नॉर्थ का पूरा इधर का बेल्ट देखोगे तो थोड़ा शोबाजी में है रहेगा, है ना. बट रियली डू दे, मतलब शोबाजी के अलावा काम करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं ऑब्वियसली. जब शोबाजी करनी तो उसके लिए पैसा तो लाना ही पड़ेगा ना, तो काम कहीं ना कहीं आ जाता है. लेकिन जब ईस्ट में जाओगे ना तो आप देखोगे वो आदमी खुश है. ओके, खाना मिल गया है तो खुश है वो, उसका खर्चा कम है.
एंड वो दोपहर को उसने सोना है. And believe me, I have an office in Assam for like 2-3 years. तो I seen कि लोगों को सोना होता था दोपहर को दिन भर. हम लोग यहाँ पे सोना तो छोड़ की दूर की बात है, यहाँ पे मतलब एक एम्प्लॉय को हम चिल्ला रहे हैं सुबह जल्दी आएगा ये करेगा. अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा दिन जल्दी हो जाता है लाइक इधर ना ईस्ट में. सो ईस्ट में लोग 5 बजे जग जाएंगे, तो ये भी एक रीजन है सोना दोपहर के टाइम पे. हाँ, तो उनको इसलिए सोना होता है दोपहर में. सो दे आर लाइक A very similar culture to Japan. जापान के अंदर भी काफी साल, बट जापान इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, बट वहाँ पे भी आफ्टरनून नैपिंग इज मैंडेटरी. क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय 15-16 घंटे काम करता है 17 यहाँ पे 7 घंटे भी नहीं काम करे. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेल लाइक इन. अच्छा दिस इज द वन थिंग ऑफ इंडिया जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टॉप करता है. इवन मी ऑल्सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. इसमें कोई वो नहीं है कि एक बॉस को भी यहाँ पे वैसे ही चेंजेस कर लेता है बॉस भी अपने आप में. एंड मैंने भी ऐसे ही काम किया तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है. बट प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे 4 आवर्स भी अगर किसी कंपनी में है ना, एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट वाली कंपनी में, इट्स अ गुड नो. इट्स अ गुड नंबर. इट्स अ वेरी गुड. क्योंकि 8 घंटे हम नाम के लिए जरूर है, 9 घंटे हैं उसमें ऑफिस में, लेकिन 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं है एवरेज. मेरे खुद ऑफिस में आई ऑब्जर्व इट. बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले नौकरी करते थे. नौकरी करने के बाद आप ये बिजनेस का इकोसिस्टम बना रहे हो, प्लस आप बिजनेस बैकग्राउंड से भी नहीं. यू आर नॉट अ बनिया, तब गुप्ता, डीसल, एनीबॉडी, ठीक है ना. हाँ. एक सैलरी वाला माइंडसेट जी से एक ओनर वाला माइंडसेट, या एक माइंडसेट व्हिच हैज अ लॉट ऑफ 100% autonomy, बिकॉज इन अ जॉब यू हैव टू रिपोर्ट, बट व्हेन यू आर योर ओन बॉस. एक सेइंग में मैंने सुना है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव अ नोन डेविल वर्सेज एन अननोन डेविल, बिकॉज आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है. हाउ डिड यू ओरिएंट योर सेल्फ इन अ वे दैट यू वांट टू नेविगेट इन दिस फील्ड? एंड आई थिंक यू आर डूइंग प्रीटी वेल. आपने इस माइंडसेट को, मैं माइंडसेट पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये नौकरी वाला माइंडसेट मैंने देखा है कि लोगों को नौकरी छोड़ने का मन करता है. थोड़ा बॉस ने अगर गाली वाली दे दिया तो कहता है कि अब मैं हो गया ना, इट्स टू मच, और मैं छोड़ के जा रहा हूँ. एंड उसके बाद फिर वो अगले हफ्ते फिर से जाते हैं, बट they do not come. Or I have also seen such examples where a person resigns, tries business, fails, and then gets back to job. And also somebody who is trying out and still trying out, because उसकी फिर जिंदगी थोड़ी लोनर्स वाली जर्नी होती है, ठीक है ना. What time is the right time to start a business? Number 1. And number 2, what are the first 3 steps if a person wishes to leave his job or start a business? Or a person who wishes to start a business if he's not a person who has ever worked. लंबा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सोच के बताइए. So, one by one चलते हैं. So first is it was not much hard for me to start a business. Reason behind it, I done my sales job starting. अब sales job में तो समझ गया, वो ऐसा ही रहता है. बेचना ही है, बेचना ही है. And I think every entrepreneur is a salesman. Yes. So मेरे लिए उतना हार्ड बिजनेस करना नहीं था. इवन व्हेन आई डूइंग माय जॉब, आई नेवर थिंक आई एम डूइंग अ जॉब. मतलब थोड़ा हार्ड होगा. आज जब एम्प्लॉय आके मेरे को बोलता है ना कि मेरी सैलरी इतनी दोगे, लेकिन काम के बारे में वो नहीं पूछता है, तो इस लाइक मेरे को थोड़ा हैरानी होती है. बिकॉज व्हेन आई डन माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं कितना काम कराओगे, कितना नहीं कराओगे, सैटरडे ऑफ होगा नहीं होगा, ये सब क्वेश्चंस में नहीं थे. क्वेश्चन में था कि मुझे करना क्या है. अच्छा इतना करना है, इतना पैसा मिलेगा, इट्स सिंपल. और फिर बॉस समझा रहा है इंसेंटिव इतना होगा, इतना होगा. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो आई एम जस्ट वर्किंग. कितना इंसेंटिव कमाया? सो विद इन 2 years लाइक आई डोंट नो, मतलब लोग थोड़ा हैरानी होगा, लाइक मेरा सैलरी ना उस टाइम पे 18-19 हज़ार रुपये का सैलरी लगा था मेरा स्टार्टिंग में, फर्स्ट जॉब मेरा. पहले मैं कुछ दिन ऐसे एजेंट वाला काम किया, फिर मेरा इतना सैलरी था. तो उस सैलरी में कुछ दिन बाद ही, 1-1.5 साल बाद, मेरा इंसेंटिव इतना आ रहा है कि मेरी सैलरी 70,000, 80,000, 9,000 रुपीज़ भी आई है. तो आई अर्न ह्यूज. सो बिकॉज इज विद द इंसेंटिव्स. एंड मैंने उस टाइम पे भी एक बिजनेसमैन की तरह ही काम कर रहा था. लाइक ओके, थोड़ा ज़्यादा पैसा कैसे आ सकता है कि मैं अगर अपने जो टीम मेंबर्स हैं या एजेंट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं को बढ़ा देता हूँ, बाहर के कैसे ले आता हूँ. सो आई क्रिएटेड अ ह्यूज टीम अपने. तो मेरा दिमाग तो वहाँ पे भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह चल रहा था. मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कब आना है कब जाना है, बिकॉज बॉस जो टारगेट्स दे रहा है मेरे उस 3 गुना अगर अचीव है. बॉस मेरा सैलरी देख के 21 तारीख को बता रहा है, स्लिप देख के, इस बार सैलरी ना कम से कम इतनी आ रही है. इस बार सैलरी enjoyed
But and you never felt that job was a job because रिलायंस को बहुत लोग गाली देते थे इवन जब मैंने जॉब करके निकला तो मैंने कंपेयर कर पाया कि जब मैं दूसरी एक कंपनी ज्वाइन करी मैक्स लाइक कंपेयर कि नहीं यार प्रॉब्लम तो था रिलायंस में बट बिलीव मी जब तक मैं रिलायंस में था एंड आई टच वुड आई एडमायर दैट कंपनी की ठीक है मुझे चांस ही दिया बेशक से मैंने सब कुछ किया लेकिन एटलीस्ट गिव मी अ जॉब मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं एलिजिबल नहीं था शायद उस टाइम पे जॉब लेने के लिए मैं खुद 18 ईयर्स ओल्ड था जब मेरा पहला जॉब लगा था तो फॉर मी देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दैट इवन मैं जॉब के रहते रहते ही मैंने अपनी इतनी बड़ी टीम बना ली थी कि उससे बिजनेस आ रहा है इवन लास्ट में जब मैंने रिजाइन दिया तो मेरा बॉस ने 1 साल तक रिजाइन नहीं लिया क्योंकि मेरा मैक्सिमम मैं कॉल सेंटर खोल लेता हूँ इससे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है उसने रिजाइन नहीं लिया एंड अच्छा है अभी आई रन अ कॉल सेंटर ऑल्सो फॉर अ लाइक स्मॉल टाइम वो बीच में एक बार किया था मैंने स्टार्ट ये जॉब के साथ साथ करा था ये मतलब जॉब छोड़ दिया था बट रिजाइन नहीं हुआ था फिर रिजाइन हो गया था 3-4 महीने तो चलता रहा मतलब मैंने जाने बंद कर दिया नोटिस पीरियड में कॉल सेंटर चला नहीं मैंने कॉल सेंटर बहुत से पूछ के चलाया था कॉल सेंटर में वही सेम काम मैं कंपनी के लिए ही कर रहा था नथिंग वाज इट तो कॉल सेंटर भी ऐसे ही कर रहा ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी था हाँ कंपनी ओनली फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे को ये अब बाहर के लिए करना है तो बॉस वाज नॉट टेकिंग रिजाइन बट फिर मैंने जाना बंद कर दिया था कुछ टाइम बाद ले लिया ये मैंने कॉलिंग वाले बंदे मैंने देखा मतलब पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इज देयर इज कॉलिंग दे एक्चुअली एंड अप बिकमिंग वेरी गुड क्लोजर्स और ये मैंने ना देखा है बिकॉज मैं जिस बंदे की बात भी करी थी ना थोड़ी देर पहले वो इज बेस्ड आउट ऑफ बर्लिन ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज करियर विद IBM दक्ष एंड वहाँ पे कर करके अब ही एक्चुअली नोज व्हाट टू स्पीक हाउ टू स्पीक एंड मतलब उसके बाद सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम ही उसने कैप्चर करा है मैंने कॉलिंग से नहीं शुरू किया था मेरा थोड़ा डिफरेंट था मतलब कॉलिंग मेरा तो था फाइनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स कराना ओके चाहे वो इंश्योरेंस है म्यूचुअल फंड है कुछ और मीडियम वाज कॉलिंग यू हैड मीडियम मैं जाता ही था बात करता था एजेंट्स बनाए थे टीम बनाया था ओके बट उस टीम को सिखाने के लिए कई बार उनको सिखाता था कि कॉल्स करके कैसे बात करना है तो वो मीडियम रहा फिर जब मैंने कॉल सेंटर ओपन किया तो मुझे रियलाइज हुआ कॉल सेंटर से ये लोग कॉल्स करेंगे मैं जाऊंगा मैं जाके क्लोज करके लाऊंगा स्टार्ट तो ऐसे आप डील्स लेकर आओगे हाँ, ऐसे फिर वो देखा कि बहुत कुछ काम आ रहा है तो मैंने अपने जैसे 2-3 और रख लिया अरे सही है एंड देन यू फर्दर फिर मैंने बहुत से काम में अब तो मैं छोड़ व्हाट वाज द नेम ऑफ योर कॉल सेंटर बनाया था वो ऐसे ही एक VMS के नाम से किया था विजन मनी समथिंग लाइक इस तरह से एंड उसमें तब ज़्यादा समझ थी नहीं तो मैंने बहुत सारे पार्टनर्स भी बना लिए थे मतलब जो आ रहा है तू भी पार्टनर बन जा 4 से 2 डाल लेते ऐसे आई हैव 8-9 पार्टनर्स और फिर सबके सब में आपस में सबको प्रॉब्लम मुझसे हो रही थी नहीं लड़ाई नहीं पैसा हम कमा रहे थे बट दे हैव लॉट ऑफ वो बेवकूफ़ वाली प्रॉब्लम्स थी उनको कि थोड़े पैसे लगा दिए लेकिन उनको लगता था रिस्पेक्ट सचिन को ज़्यादा मिलती है तो इस बात पे भी लड़ाई थी ईगो इशूज बहुत थे और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे जब मेरा मतलब 4 साल हो गए थे रिलायंस में तो आई वॉज 22 ईयर ओल्ड और हमारे पास 70 एम्प्लॉइज़ का पूरा कॉल सेंटर बन गया था तो बड़ा हो गया था वो था देन फर्स्ट के और बदले अच्छा 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो बंदी हो गया एंड आई वाज फील एट दैट टाइम आई वाज डिप्रेस्ड बट आई डोंट नो आई वाज डिप्रेस्ड उस टाइम पे नहीं पता था बट था भाई नाउ आई रियलाइज यार कि हाँ मैं था उस टाइप पे देन आई अगेन जॉइन मैक्स लाइफ तब मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी फिर 1.5 year आई वर्क विद देम एंड आई वाज गुड देयर आल्सो सो आई थिंक लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस होंगे बट इफ यू आर अ सेल्स कंपनी एंड यू आर नॉट गुड एज एन एम्प्लॉय आई थिंक आप समझ लो आप एंटरप्रेन्योर भी अच्छे नहीं है तो ना ही मन नहीं बस करूँ ज़्यादा अब मेरे को अभी 3 स्टेप्स मतलब या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको करने से 3 चीज़ें मतलब बिकॉज 3 इज गोल्डन नंबर तो हिसाब से इन टुडेज सिनेरियो इज डिफरेंट ओके व्हेन आई स्टार्टेड आई थिंक अगर किसी ने उस टाइम पे बताया होता तो मेरे लिए बहुत आसान होता है लाइफ आप तो सीधे 5-7 साल जो है वेस्ट किए वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आई डोंट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट क्योंकि जब 2015 से लेकर नहीं स्टार्टेड लाइक इन 2017-18 टाइम लगा जो वो टाइम ना लगता इफ आई नो ऑल दीज थिंग्स एग्जाम्पल वन इज चूज अ बिजनेस इन योर स्ट्रेंथ अब इसको कैसे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल what you have that 99% people didn't have not at all example के लिए कि you have a knowledge of something or you have a British passport or you
योर फादर इज अ पुलिसमैन और योर यू हैव अ जैन कम्युनिटी और व्हाट्सएवर, सो जो भी चीज़ 9-10, अब देखो जैन तो 1% थोड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन का कमी है ना 1% से, तो अगर आप जैन भी हो तो वो आपकी 1%, ठीक है। अब आप जेल से आप क्या कमा सकते हो, ठीक है। आप फार्मर हो ना, इट्स अ स्ट्रेंथ, It's a strength. आप पता है आपने पूरा, अब फॉर एग्जांपल फॉर मी या फार्मर वाज अ स्ट्रेंथ फॉर मी, लाइक मैंने तो हल भी चलाया है, जमीन के साथ जुड़े हो। सो मैंने तो हल भी चलाया था, आई अंडरस्टैंड की बेसिक्स कंसेप्ट हर चीज का कैसे है। सो इफ आई स्टे इन अ विलेज, तो मेरे को ये पता है कि मेरे लिए अब आसान है, मेरे को, मैं फार्मर हूँ, पहली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को नॉलेज है सिटी में कैसे काम करता है, मुझे पता है स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे पता है मंडी पे कैसे काम होता है, मुझे पता है यहीं से अगर मैं कुछ लूँ तो इसको मैं कैसे ऑर्गेनिक बना के बाहर बेच सकता हूँ और मैं इसका एक्सपोर्ट कर सकूँ तो इसका और अच्छा है। सो मुझे पता है ये सब कुछ, तो जब पता है तो यही काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे डू समथिंग जो उनका दोस्त कर रहा है, दे डू समथिंग जो वो देख रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हाँ। सो पीपल आर लाइक, ओके मुझे पता तो चल ही जाता है, देखो क्योंकि हम इंडस्ट्री में, मेरे दोस्त हो गए हैं, मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने वही फॉलो किया जो मैंने किया, एंड दे आर नो वेयर, अभी फिलहाल वो परेशान भी है। मैंने एक बार समझाने की भी कोशिश करी कि मत करो, कि मत करो, बिकॉज दे That's not your strength. हाँ, वो तो दोस्ती है, प्रोफेशनल लोग जैसे होते हैं ना, हम जैसे मैं और आप पहले 6 साल से जानते हैं एक दूसरे को, तो बीच में हम मिले, आप देख रहे हो, आपने कहा अच्छा सचिन ये कर रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ। इट्स नॉट हैपन, लाइक आई नेवर स्टार्टेड एनीथिंग, लाइक मैंने इवेंट कंपनी कभी शुरू नहीं की थी इवेंट चलाने के लिए, मैंने तो एक नेटवर्किंग करना था, मुझे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, You first created a community. हाँ कम्युनिटी, मुझे कम्युनिटी क्रिएट करनी थी, नेट इवेंट तो उसका एक पार्ट था, वो बनता चला गया अलग बात है। सो सिमिलर वे में, सो व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, फर्स्ट अंडरस्टैंड भैया व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पता चल गई है, आपने कौन सी एजुकेशन करी है, तो आपके दोस्त भी किस तरह के हैं, आपको पता है ये बात, आपके आसपास का नेटवर्क किस तरह का, आपको पता है ये बात, तो ये कई लोगों को यही समझ नहीं आता है। नोट इट डाउन। अभी रिसेंटली आई मेट विद वन ऑफ माई लाइक लिंक्डइन एक फ्रेंड थी, उनसे वो शी केम टू ऑफिस, शी टोल्ड मी दैट she has her husband has a cloud company and they're doing well. Now she's thinking what she has to do. I told her you have to start a media company of a special industry where IT, cloud, robotics, all people will come together. So you can promote your company as well. Also you have a different business but your husband has an interest also और strength भी मिलेगा उसको। इट्स वेरी ईजी, उसको ऐसा काम करना था जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं दे सकती है अभी एक, तो इट्स वेरी ईजी। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ इज यू कैन से लाइक अ की, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा है, 4 लोगों से और भी बात कर सकते हो कि मैं किस में अच्छा हूँ, बता सकते हो व्हाट इज द यूएसपी अबाउट मी। बोलना अच्छा आता है, मेरे पास ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त ऐसे, हर चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है। आप 99% लोगों से क्या बेटर हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में बता रहे हो। तो फर्स्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। Strengths, got it. तो आपको अब क्या मिलेगा, आपका बिजनेस आइडिया। अब बिजनेस आइडिया ढूंढो, लोग उल्टा करते हैं, पहले बिजनेस आइडिया लाएंगे, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, अरे नहीं है बढ़िया। अच्छा, तो पीपल आर गेटिंग अ बिजनेस आइडिया और सोचते कि वो चल जाएगा विदाउट आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स। तो पहला है स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ समझ लो, फिर बिजनेस आइडिया ढूंढो उसके आसपास में, Okay. क्योंकि कोई भी बिजनेस बुरा थोड़ी होता है। कौन कहता है ये बिजनेस बुरा है, ये अच्छा है? सही। चला किसको पा रहे हो, तो यार तुम्हारा नेटवर्क किस में है। तो फर्स्ट इज हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। सेकंड इज वेरी बेसिक, और यू कैन से लाइक व्हाट काइंड ऑफ funds you have right now or you can arrange for easily. कि for day one पे when you are going in a market and you can just bread and butter निकाल लो। तो एग्जाम्पल के लिए you are first time entrepreneur as you are discussing, तो पहली बार जो एंटरप्रेन्योर है, ऑब्वियसली बात है, अगर घर में बहुत अच्छा पैसा है, फैमिली फंड्स हैं, सब कुछ है, तब तो एक अलग बात है। then you can just hold the funds 10 times of the actual requirement of your business running। आपको लगता है ना कि आपका अगर बिजनेस 10 लाख में चल जाएगा तो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट करता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक अमीर में और एक गरीब में फ़र्क कहाँ है, ये फ़र्क है। गरीब अगर एक बार स्टार्ट करेगा, बेचारा 10 लाख रुपये जुगाड़ भी कर लिया उसने, उसका फेल हो गया, वो फेल होगा, तो ये तो मान के चलो 3 बार 4 बार 6 बार फेल होगा। वो फेल हो गया तो दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन जिसके पास वो पैसा है वो 10 टाइम्स स्टार्ट कर लेता है। नाउ थिंक अबाउट इट कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसको उतने ही स्किल से करो कि अगर वो उस लेवल पे फेल तो तुम बार स्टार्ट कर सको। एटलीस्ट 3-4 बार तो कम से, उतना फंड्स होना चाहिए।
एटलीस्ट फर्स्ट 1 year और यू कैन से लाइक 2 years इन अ बिजनेस, थिंक अबाउट इट कि ये इसका ना एक ग्रोइंग पार्ट है, बिजनेस बार बार चेंज होगा। आपको लगता है जैसा अब ये तो चल ही जाएगा, नहीं चलता है वो भी, तो बार बार बिजनेस चेंज होगा। यू विल जस्ट फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, ये राइट मॉडल है। स्टार्टिंग में कम पैसे से धीरे धीरे फिगर आउट करो क्या चीज़ है जो आपकी चल जाएगी, और 2-3 साल तो कंफर्म मान लो, फर्स्ट टाइम एंटर हो जाओ, उसके बाद पता चलेगा ये चलेगा, उसमें फिर थोड़ा सा ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो स्ट्रेट अप कि किसी भी फाउंडर को कोई गोल रखना नहीं चाहिए? गोल इन द सेंस कि मेरा इतना रेवेन्यू हो जाएगा व्हाइल आई एम बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी? 3 साल तक गोल नहीं है, कोई गोल नहीं है। 3 साल तक सिंपल गोल एक रखो कि यस व्हेन आई एम रनिंग, सर्वाइवल के लिए पैसा निकलना शुरू हो गया। फर्स्ट है सर्वाइवल इज फर्स्ट है सर्वाइवल, Survival. वो भी 1 साल के बाद। होता है बहुत होगा, सर्वाइवल स्टार्टिंग से आ रहा है, अगर आ रहा है ना तो बहुत अमेजिंग, गुड बिजनेस, वेरी अमेजिंग। ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें सर्वाइवल पहले जैसे आ जाता है, ठीक है। जब सर्वाइवल आने लग जाएगा, सेकंड स्टेप लेना है, थर्ड स्टेप लेना है, वी हैव टू, और गोल या गोल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। सो आई हैव टू मेक अ गोल विजन ऑफ 5 years। बट जब मैं 5 year गोल विजन बना रहा हूँ ना, जब अगले महीने देखूंगा वो विजन का वो चीज़ अचीव ही नहीं हुई जो मैंने प्लान की थी, ठीक है, तो मेरा विजन चेंज हो जाना चाहिए, अपग्रेड हो जाना चाहिए। तो मुझे हर महीने उसे अपग्रेड करना है, हर महीने मुझे फिर उस पर काम करना है। देन या डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज वन डे। करेक्ट। सो इट्स 2 थिंग्स। फर्स्ट ये हो गया कि आपको बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो बताना चाहिए। सेकेंड, आपका पैसा उतना होना चाहिए कि अगर आप 2-4 बार फेल हो रहे हो, आपको पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो कम से कम तब भी आप ना 1 से 2 साल तक आप बड़े इजीली मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हो। नाउ इट्स अ थर्ड पॉइंट, ये मेरे पे काम किया जरूरी नहीं है सब पे काम करे। ओके, बताइए। यू आर अ ब्रांड, यू आर अ ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। yeah, so founder, today's scenario is totally changed. You need to learn lot. So the person who is running a company, उसका basic understanding हर एक field का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। I'm not saying he has to be perfect in everything. He has to be a perfect person. उसे सबका थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसे विजन क्या डिसाइड किया मैंने, प्रोसेस कैसे बनाया मैंने, उसको एग्जीक्यूट मुझे कैसे कराना है, उसको ये आना चाहिए। उसको एक सेल्फ सफिशिएंट एक पर्सन होना चाहिए, एंड उसे कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। उसे सोशल मीडिया है, कहीं पे भी है, किसी भी टॉपिक पे वो बात कर सकता है। दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट टुडे सिनेरियो। सो आज इफ यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग अ रील, यू विल नॉट रिमेंबर थर्ड रील जो तू स्क्रॉल करी थी। हाउ कैन समवन रिमेंबर योर ब्रांड लोगो? नहीं कर पाएगा। तो इतना पैसा ब्रांड रिकॉल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत हो गया है अभी, बिकॉज टू मच ऑफ डिजिटलाइजेशन है, कंटेंट बहुत है, ठीक है। ह्यूमन रिकॉग्निशन, ह्यूमन रिकॉल इज इजी। मुझे तुम याद हो, कैसे भी याद हो, 6 साल बाद मिल रहे, आज भी याद आ रहा है, याद तो अब याद आ गया है ना, नहीं भी याद है तो याद आ जाएगा, जल्दी याद आ जाएगा। सो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है तो आपको अभी जब प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, आपको फाउंडर बनना है, फ्रॉम डे 1 आपको बस क्रिएट करना है। डू यू थिंक पब्लिक कंपनी है, मैंने पहले से बनाई है अपनी सारी, माई HBF इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, क्या फर्क पड़ता है पब्लिक या प्राइवेट भी बनाता था, मैं LLP भी बनाता था, तो मुझे कौन सा उससे बेनिफिट हुआ बताने का बेनिफिट हुआ। पीपल थिंक अरे पब्लिक कंपनी है, लोगों को डिफरेंट चाहिए। अगर मेरे 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग भी गए 4-5 साल में उसके नाम पे, कोई बात नहीं, मुझे उससे ज़्यादा का मार्केट मिला है हर चीज़ में। अगर मैंने इवेंट्स किए तो मेरी जब इवेंट्स हुए तो लोग कहते कैसे कमाओगे? मैं कमाने के लिए नहीं है, यू हैव टू क्रिएट, और बताना है लोगों को व्हाट आई कैन गिव टू अदर्स। सो फर्स्ट इज लाइक क्रिएटिंग बज, प्रेजेंटेशन, खुद का नॉलेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस आई रीड ऑल दोस थिंग्स, इवन लीगल, अकाउंटिंग। मैं एक सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा। इफ someone wants to become investor, consultant, or wants to understand things on our, maybe House of Lies is a good series. House of Lies. हाउस ऑफ लाइज, ओके, So ठीक है। you will understand none of the corporate, a head corporate, जो बैठा है, जो जैसे कभी लगता है या मेरा क्लाइंट ना वो है, बहुत सारे लोग देखो ना जब PPT बनाते हैं, मैंने आज तक मतलब या आई यूज समटाइम जब मुझे लगता है कोई अलग ही बड़ा है, कोई बिल्कुल ही अलग बड़ा कॉर्पोरेट है तो ठीक है, नहीं तो हर तीसरी कॉर्पोरेट आप बहुत सारे नाम डाल दो, चाहे उनके लिए क्या किया है, चाहे उनके लिए जाके बहुत छोटी सर्विस के लिए नाम के लिए, ठीक है, मैं तो वहाँ पे केटरिंग का काम करवाया है, कुछ भी किया है, पर इसका मतलब आपने बहुत सारे लोगोज डाल दिए, तो पीपल इज क्रिएटिंग अ, ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है, पर वो एक लेवल तक ही चलता है, पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ योर सर्विसेज एंड ऑल, वो समझ में आता है। बट एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट के अंदर भी ना जो पर्सन डिसीजन मेकिंग में बैठा है, प्रॉब्लम ये है कि ही इज अ ह्यूमन, ही इज नॉट बिग, but we create a image
मेरी आज XYZ कंपनी में मीटिंग है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। आधा तो वो बेचारे को इसीलिए दबा देते हैं, स्टार्टअप वो बनने नहीं देते ये सोच सोच के, पर दे आर नॉट थिंकिंग अरे वो भी ह्यूमन है एग्जैक्ट। और नॉर्मल लोग बैठे हैं। एंड बिलीव मी, जब वो वहां से बाहर निकल जाते हैं ना, उनकी वैल्यू तक नहीं है, और जब वो कुर्सी छोड़ देते हैं ना, उनका जूनियर भी उन्हें रिप्लाई नहीं करता है तो सैड बट ट्रू रहता है, कॉर्पोरेट का सिनेरियो ऐसा ही है। तो वैसा है। तो स्टार्टअप्स जब हम लोग ये देखते हैं कि वी हैव टू create a buzz in the market, we have to build things, so we have to understand the entire scenario. Every place is a human, we have to make presentable. वेरी ह्यूमन सेंट्रिसिटी होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर एट द एंड ऑफ द डीलिंग विद अनदर ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह ही है वो दूसरा। टुडे स्टार्टअप के लिए तो यही है। देखो स्टार्टअप के लिए तो आप एक कॉर्पोरेट बना रहे हो, आप बन चुके हो, आप पहले हो चुके हो, आप ठीक है आज तो आप इंसानों को नहीं देखोगे, हाँ ठीक हो सकता है। और टाटा एक पीपीटीज देखोगे। हाँ पीवीडीज देखोगे आप। टाटा का मैं तो टाटा में काम करने वाला जनरल मैनेजर हूँ, या मैं एक एक्स है मैकेंजी हूँ, तो मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो बिकॉज इन लोगों की वैल्यू कम है, ठीक है, जो ये कम है ऑब्वियसली। मैं एक्स मैकेंजी हूँ, मैं ये मैं अरे वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन बना हुआ है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपके लिए ब्रांड के इंपॉर्टेंट, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना आज टफ है, बट खुद को ब्रांड बनाना ज्यादा इजी है। करेक्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री। तो ये तीन चीजें ध्यान रख के बिजनेस शुरू करना चाहिए। गुड। शुरू करने के बाद बहुत सारी अलग बातें हैं, बट शुरू तो इन्हीं चीज से करना चाहिए। गुड। तो मतलब ये तीन चीजें आपने बहुत अच्छी बता दी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच फाउंडर्स नॉर्मली मेक व्हेन दे स्टार्ट ऑफ? मिस्टेक्स मिस्टेक पहला या हाँ, थिंकिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस इज गुड, तो ये लिख जाए that this product is good, I give a time on this, ये बिक जाएगा। ओके That's the first mistake. ओके, ठीक है। You read a book, ये सॉरी रिपोर्ट ऑफ ब्लूम वेंचर का रिपोर्ट पढ़ा है ना? सो ब्लूम वेंचर के रिपोर्ट के हिसाब से लाइक जैसे पहले देयर वर 3 कि भैया या तो मुझे इंग्लिश आती है, या मैं इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाऊं, या मैं कंट्री से एग्जिट कर जाऊं, तो मेरी वैल्यू है। तो ऐसा हम मानते थे। अब चाहे मैं कंट्री से जाके बाहर जाके वो दुबई में कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो बिल्कुल ही लो लेवल का काम है, पर दुबई में है या कहीं और बड़ी जगह पे, तो फैमिली इज हैप्पी कि यार एक अच्छा वो काम कर रहा है। अब सरकारी नौकरी कैसी भी लग जाए, पर सरकारी नौकरी है तो बड़ा आदमी है। यस। तो ये थॉट प्रोसेस इंडिया में है, लेकिन फाउंडर भी आज चौथा एक पॉइंट जुड़ चुका है कि व्हेन आई से आई एम अ फाउंडर, आई थॉट दैट आई हैव अ वैल्यू इन अ मार्केट। तो ये हमारा इज इट ट्रू? इज ट्रू। It's now- ये भी ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट का पॉइंट है, बट पहले भी ऐसा था। तो लोगों ने जो है कि यार फाउंडर्स, सो आई रियलाइज इन 2018 एट दैट टाइम कि हर तीसरा चौथा आदमी आज बिजनेस की बात करने लगा है। ऑप्शंस कम हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस करना थोड़ा आसान हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी आसान होती जा रही है। उस टाइम पे इंडिया फाइलिंग वगैरह का बहुत On a registration front it is easy, but on the business front मेरे को it's very tough. It's tough. Because हर कोई तीसरा बंदा रजिस्टर करता है कंपनी। किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे जहां अति होगी, जहाँ पे अति होगी, अति मीन्स ज्यादा हो जाएगा, हाँ, वो बिजनेस खराब हो जाए, वो जगह में आप नहीं रह पाओगे। वहां फिर सरवाइव करेगा वो जो ऑलरेडी टॉप पे है, फर्स्ट मूवर है, या कोई बड़ी फर्म जो बहुत सारा पैसा लेके आती है। deep pockets. सो एग्जाम्पल के लिए, डू यू थिंक रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट गुड? It's very good. इट्स वेरी गुड। बट प्रॉपर्टी डीलर जब कॉल करता है, बेचारे की इज्जत नहीं, जब वो बताता नहीं है वो प्रॉपर्टी डीलर है, क्योंकि हर तीसरा आदमी बन गया। जो चीज़ बनना आसान है, इसमें तो ऐसे ही होता है, कमीशन वाले हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस। इंश्योरेंस एजेंट इज नॉट गुड, इट्स वेरी गुड जॉब, Very good. बट मैंने तो खुद शुरू किया है, लेकिन शर्माता है वो इंश्योरेंस एजेंट बोलना, बताने से पहले, है ना? because policy बेचते हैं वही। क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा हो जाएगी लोग, तो पॉलिसी बेचना गलत थोड़ी है, लेकिन लोग ज़्यादा हो गए, हर आदमी को बेच रहे हो, तो फिर अति होगी, तो फिर वो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हर चीज़ आदमी स्टार्टअप ही खोलेगा, तो बहुत सारे चांसेस वहाँ पे बढ़ेंगे फेलियर के। अब उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो सीखेंगे, जो प्रॉपरली काम करेंगे। अब किसी भी जगह पे अति नहीं है, बिजनेस कम है, बहुत ही कम है, वहाँ डिमांड सप्लाई की गैप में बिजनेस ही नहीं है, तो वहाँ पे एक शॉप खोल दी जाए, चली जाएगी थोड़ा बहुत करके, नहीं भी आता होगा उसे तो भी चल जाएगी। लेकिन अति होगी तो वहाँ पे अच्छे बिजनेस जरूर बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी ख़त्म भी होंगे। सो जब ये अति हो रही थी, तो आई रियलाइज आई हैव टू डू समथिंग कि जो
मुझे खुद फाउंडर ना बन के फाउंडर्स की हेल्प करो, तो मेरे पास कस्टमर मार्केट बेस बहुत बड़ा है. That's why I thought कि भी इकोसिस्टम बना. Rather than going for the products, you went for a venture studio, right? So वेंचर स्टूडियो हमें नहीं पता था कि इसको venture- जो अभी नया है, एक वो क्रिएट कर दिया. तो वेंचर स्टूडियो में क्या हुआ, हो क्या रहा था, जब मैं मार्केट में जाके अपनी कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा था, कुछ दे रहा था, तो मुझे सर्विसेज के पैसे नहीं मिल रहे थे जो मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं एसएमईज और एमएसएमईज की जैसी कंपनी के पास जा रहा था. दे वर आस्किंग कि क्या एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कंसल्टिंग का, तो मुझे पैसा क्यों दे भाई. ₹1,00,000 मांगना भी लाइक बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा था. कुछ कंपनियों ने दिया नो डाउट, बट बहुत कम बिजनेस आ रहा था, तो उससे काम नहीं चल रहा था. सो देन आई सेट अप फ्यू कंपनीज जो कि कंसल्टिंग के बाद की सर्विसेज की जरूरत थी जिनमें, जैसे कि एक मार्केटिंग कंपनी. तो मैंने एक कंपनी बनाई, वो काफ़ी पहले बनाई थी, एक ब्रांड 195 पर किट्स. मैं अपने क्लाइंट को जाके बता रहा हूँ कि ये आपका रोड मैप है और मार्केटिंग कराने के लिए ये मैं कंपनी आपको रिकमेंड करता हूँ, इनसे करवा लीजिए. तो अब मैंने उससे कंसल्टिंग का भी पैसा लिया और मैंने ब्रांड मार्केटिंग करने का भी पैसा लिया, क्योंकि पहले वो क्या कर रहा था कि कंसल्टिंग के पैसे नहीं दे रहा था, मार्केटिंग कर दो उसी में, उसके लिए काम था सब कुछ. देन आई रियलाइज कि मुझे बाकी भी ऐसे ही करना पड़ेगा. सो आई सेटअप प्रॉपरली वे में वो कंपनी सेटअप करें कि इनसे मैं क्लाइंट्स अच्छे ला पाऊंगा. और उन कंपनी से बात, तो कुछ कंपनीज अच्छी आई मेरे पास में जिनसे बात होनी शुरू हुई. मैं कहा तुम्हें मैं फंड्स कराता हूँ. अच्छा फंड्स, तो वो कह रही है यार फंड्स छोड़ो, हमारे ना बिल्कुल हमारा आईटी का बंदा नहीं रहा है, हमारा ये सॉफ्टवेयर बनना है. मैं यार मेरे पास ना आईटी की टीम है. प्रॉब्लम. हाँ मेरे पास आईटी की टीम है, एक काम करते हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी टीम से काम करवा लो. रिसोर्स शेयरिंग. हाँ मेरे को रिसोर्स शेयरिंग नहीं, मैं तुम्हें करके देता हूँ. मतलब कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आए शुरू में, अच्छे स्टार्टअप्स. फ्रीलांस मॉडल था ये, तो काइंड ऑफ. नहीं मतलब वो लोग ओके. सो मेरे पास में क्या होता है, जब मैंने कुछ कंपनीज अपनी बना ली जिनमें मैं सर्विसेज दे रहा था, तो आई फाइंड अ अपॉर्चुनिटी गैप कि लोगों को एक्चुअली पैसा चाहिए किसके लिए, कि यार मेरे को ना अपनी आईटी कंपनी में, मेरे पास आईटी की टीम नहीं है. तो मैंने कहा मेरे पास है, तो तू जो 1 करोड़ रुपये मांग रहा है आईटी के लिए मांग रहा है क्या. हाँ तो मैं तेरे को ये सब कुछ बना के दे देता हूँ. Give me 1 crore rupees. तो 1 करोड़ रुपीज के शेयर मुझे दे दे. अगर Seriously? हाँ अच्छा, you never took money from them, you took a हाँ, share. जो मेरे पास मैंने कंपनी तो बना ली, लोग भी आ गए, पर उतना काम नहीं आ रहा था. तो दिस आई स्टार्ट टेकिंग शेयर्स अगेंस्ट माय सर्विसेज. ये मेरे को सिलिकॉन वैली के एक बंदे की याद आ गई है. तो ऐसे करते करते हमने काफी सारी कंपनियां हो गई. मैंने कहा यार इसको एक मॉडल का नाम दे देते हैं कि यार इकोसिस्टम बनाते हैं. तो हमने एक इवेंट करना शुरू किया कि फाउंडर्स की कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए फाउंडर्स क्लब इंडिया बनाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि नए बिजनेस में पैसा लगाइए, खुद से मिल के बिजनेस बनाइए, या फिर आप अगर जॉब भी करें थोड़ा सा पैसा लगा कैसे वैसा बिजनेस कर सकते. देखो हमने इतनी सारी कंपनियां बना दी. तो ये सब दिखाने के लिए एक कंसेप्ट बनाया. एंड जब वो कम्युनिटी बनने लगी तो वो तो खैर नहीं आए इन्वेस्टर टाइप के लोग, तो बहुत सारे फाउंडर्स आ गए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. मैंने कहा देखो पैसे तो मैं नहीं है, बट प्रॉब्लम जो है इसके अगेंस्ट में मैं सर्विसेज तुम्हें दे देता हूँ. मेरे को आपसे बात करते करते ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा फाउंडर्स बना दिया अभी कम्युनिटी. अभी नाउ यू आर एक्चुअली हैविंग अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कि देखो मेरे पास इतने सारे फाउंडर्स हैं, एंड यू नो व्हाट आई गॉट अ वेरी गुड. तो अभी ऐसा ही हो रहा है. ऐसे ही कुछ. ऐसा ही हो रहा है. ऑलवेज स्माइलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सचिन का स्माइल हमेशा अच्छा लगता है. एवर स्माइलिंग नो मैटर व्हाट. इट्स मैंडेटरी. वैसे एंटरप्रेन्योरशिप में देखो सिचुएशन इज लाइक इतने सारा प्रेशर तो रहता ही है, एटलीस्ट देयर इज अ वन थिंग वी हैव टू अडॉप्ट की कंटिन्यूअस स्माइलिंग, सो दैट प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो थोड़ा सा कम फील होता है. एंड व्हेन यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक माय टीम, माय फैमिली, एवरीवन सीइंग अस अ लॉट. और हम खुद परेशान है, परेशानी तो रोज रहेंगी. सो वी हैव अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स. अब वो प्रॉब्लम्स को अगर फैमिली भी देख रही है या फिर लाइक टीम मेंबर्स देख रहे हैं, वो वैसे ही मोटिवेट नहीं रहेंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर whatever problem should come, or you have to prepare. क्या होगा सॉल्व कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो we have to smile, and it's very hard. It's very hard. We have to make it practice. It's very hard. Seriously, it's very hard. When someone says I'm a founder, ठीक है, वो अच्छा है बुरा है, one thing is very clear, he is a risk taker, and either you are a consultant or you are a B2B service provider. We just give him a respect. Just give them respect. Trust me, 99% founders are not founder because they want money already. Money, they want to show off to others that they are capable, they want to big, but they started a business because they want to show the world and they want the respect
लाइक अदर्स की बड़ों को जैसे मिली है, वो उन्हें वो चाहिए, इज्जत. या इज्जत चाहिए उन्हें, ठीक है. एंड दिस इज व्हाई दे आर अ फाउंडर. Correct. एंड नाउ यू आर जस्ट सिटिंग लाइक अ बॉस टू देम एंड टेलिंग देम कि ये करो वो करो, बड़ा बड़ा करो. क्या पता उनका ऑफिस तुमसे बेटर हो और नहीं हो उनका बेटर. तुम उनके सामने एक सीट के उस तरफ बैठ के अपने आप को बड़ा नहीं बता सकते. यू आर नॉट अ गुड कंसल्टेंट, यू आर नॉट अ गुड इन्वेस्टर, नथिंग एल्स. यू हैव टू सिट either like equal, do every meeting in a conference, do not do in your cabin. It's a first formula if you want to work as a B2B partner or a company. It will be very easy for you to grow, क्योंकि चाहे वो founder छोटा है बड़ा है, doesn't matter. So in my office then this time, last time also when we build our office, so we have no cabins. मैं cabin नहीं रखना है जिसमें एक पे इस तरफ मैं बैठा हूँ. सो वी बिल्ड स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मीटिंग रूम, ट्रांसपेरेंसी रखा है, कम्युनिकेशन ओपन रखा है. कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का, छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम टाइप का, जहाँ इधर मैं बैठा हूँ तो मेरा सेम चेयर है. राइट. इन दिस ऑफिस, अभी हमने जो ऑफिस बिल्ड किया तो मैं वो ऑफिस किसी और से बनाया, उससे चेयर वैसे रख दिया बड़े वाला बॉस वाला. सो व्हाट वी डू, मैंने वो चेयर हटवाए, वी सेटअप लाइक लव इट. सामने Very good, हाँ. वो सोफास, इधर भी सोफा या चेयर. सो आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक दिस, बीच में कुछ है ही नहीं है, तो मैं उधर नहीं बैठता हूँ. द रीजन इज वी हैव टू शो द रिस्पेक्ट. चाहे वो मेरा क्लाइंट बनेगा नहीं बनेगा वो सेकेंडरी है. पहला, आई रिस्पेक्ट अ लॉट कि तू फाउंडर है भाई और मैं और तू साथ में ली कंपनी है. सो व्हेन यू आर कमिंग टू मी इन वेंचर स्टूडियो ऑल्सो, व्हेन आई सेइंग मैं सर्विस दे के तुमसे शेयर ले रहा हूँ, या कल को मैं पैसे भी कराऊंगा तो किसी और से कराऊंगा, या मुझे फंडिंग आ जाएगी मैं पैसे भी दूंगा तो भी मैं तेरा पार्टनर हो गए, मिल के काम करते हैं. ये जो है ना, मिलके काम करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर. हाँ, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. क्योंकि मिल के काम करते हैं. मेरे को दूसरा पॉइंट जो समझ में आया कि फाउंडर डे टू डे ऑपरेशंस में वो घुस गया है. अभी मैं उसे कैसे निकाल सकता हूँ? मैं उसे दो ही तरीके से निकाल सकता हूँ. पहला, वो जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना, आई थिंक वो ऑफ कैमरा था, कि जब भी तुमने देखा कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बज़ क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो बज़ क्रिएट ना हर फाउंडर की ज़रूरत है आज. तो मेरे फाउंडर की लाइफ में बज़ क्रिएट कब होगा? वो तो रोज का बिजी है बेचारा. वो मैं काम करता हूँ एज ए को फाउंडर. आई हैव टू बी हिज ब्रांड मैनेजर और ब्रांड ऑफिसर और CBO और समथिंग. आई हैव टू हिज फाइनेंशियल ऑफिसर और समथिंग, जो इन्वेस्टमेंट जाके, क्योंकि एक इन्वेस्टर को उससे पैसे लेना या फिर एक वेंडर से पैसे निकालना है, एक बड़े क्लाइंट से पैसे निकालने में भी तो उसको ऐसे ही बड़ा बज़ क्रिएट करके दिखाना है हमें. सो वो कैसे दिखाएंगे हम लोग? वी विल शोकेस जब हम लोग वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस करेगा और मैं उसकी लाइफ में उस तरह के स्टैंडर्ड मॉडल क्रिएट करूँगा. सो दैट्स व्हाई वी से कि यार मिलके काम करते हैं. तो आप क्या करते हो सामने वाले बंदे के, फॉर एग्जांपल फाउंडर मोस्टली स्टक इन ऑपरेशंस मेजरली, वो मेजरली इतना ज़्यादा स्टक हो जाता है कि वो बंदा प्रोडक्ट या सर्विस पे काम ही नहीं कर पाता. तो आप ये सारे का सारा उठा लेते हो उसके ऑपरेशंस और उसको बोलते हो कि जा तू खेरी, बेसिकली जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला मोड दे देते हो उसको, सो दैट ही कैन प्ले अ फुल गेम. ओके, हाँ ऐसा कह सकते हो. और इसको थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं. हाँ, जैसे एक फाउंडर है, वो मेरे पास आया, वो परेशान है कि, और उसका पहला परेशानी क्या है कि पैसे आ जाते हैं सब कुछ सही कर दूंगा. फिर मैं उसको समझा, एक्चुअली होता है यार. नहीं वो तो कभी नहीं होगा. ओके, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन हमेशा याद रखना. इफ यू कांट रन योर बिजनेस विदाउट फंडिंग, इवन आफ्टर फंडिंग यू कांट. गोल्डन स्टेटमेंट, आई टोटली अग्री. फंडिंग तब मिलता है जब तुम्हें फंडिंग का जरूरत नहीं होता है. वो मिलता ही क्योंकि मैं जब पैसा रखता हूँ तो मैं उसको पैसा दूंगा जो ग्रो कर रहा है. तो ग्रो करते हुए मेरे को 4 का 6 करेगा, 6 का 60 करेगा. मैं उसको क्यों दूंगा जो सर्वाइवल के लिए बात कर. मैं क्या, कोई भी नहीं देगा. जिस बंदे को फंडिंग की जरूरत ही नहीं उसी को फंडिंग दोगे, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड्स. मैं वैसे उसी को दूंगा जिसके वो भी हो, बैंक भी उसी को देता है. तो आपको क्या लगता है, टाटा जाके लोन मांगे तो उसको मिल जाएगा, और चाहे उसकी रेशियो वाइज जितना उसका टर्नओवर है और जितना उसने फंड मांग रहा है वो, उसका कोई रेशियो नहीं है. लेकिन एक छोटा पर्सन आके कह रहा है कि मेरी वर्थ इतनी है, तब भी हम कह रहे हैं तेरी जमीन के अगेंस्ट में तेरे को 50% देंगे, 70% देंगे. और टाटा कह रहा है कोई जमीन नहीं है तब भी मिल जाएगा. तो इट्स ऑलवेज लाइक हमें दिख रहा है उसका. तो जहाँ जिसको फंडिंग की जरूरत नहीं है, नहीं मिलता, उसी को मिलता है पैसा. मेरा ना इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी, ये पूछ सकता हूँ कि सॉरी ये क्वेश्चन बीच में आ रहा है.
ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप किस टाइप के फाउंडर्स को बैक करते हो। आप मतलब हर टाइप के फाउंडर्स को बैक करते हो, लाइक राइट फ्रॉम सोलोप्रेन्योर्स टू एसएमईज, और यू हैव अ सेगमेंट कि नहीं भाई मैं सिर्फ एसएमईज हु आर अर्निंग अ रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू दिस मैं उन्हीं कहता हूँ। सही बताऊं, दिल मिलना चाहिए। मतलब ही कैन बी एनीवन, हाँ, ही और शी कैन एनीवन। ओके, एनीवन। देखो यार, दैट्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती हैं, आई हायर और लाइक ऑन बोर्ड वेरी क्विकली टू एनीवन। इफ आई कैन गिव समथिंग इमीडिएटली, आई गिव इमीडिएटली। लाइक अच्छा, ये इवेंट आ रहा है, वहाँ पे अपना स्टॉल लगा ले बड़ा सा। अच्छा, वहाँ पे ना उससे उस इन्वेस्टर से मिल ले। अच्छा, वो बैंक का पर्सन है, वो ऐसा ऐसा कर देगा, फंड दे देगा, जो करना है कर ले। एंड व्हेन आई स्टार्ट गिविंग, या तो 10 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही वो पर्सन इज नो मोर इन माई लाइफ, क्योंकि वो 2-4 हरकतें ऐसी करेगा। अच्छा, मेरे को डर लगा। When I realize कि यार ये आदमी ना ठीक नहीं है, इसके साथ जाया नहीं जाएगा। उसकी वो छोटी छोटी चीजें, राइट, बहुत छोटी चीज। इफ योर हैबिट इज लाइक कि ना सब कुछ मैं ले लूँ, हैबिट इज लाइक कि आप ना मुझे ये रियलाइज करा दो कि ये कंपनी मेरी नहीं है। टाइम कमिंग ऐसे पार्टनर, तो कंपनी मेरी है, मुझे रियलाइज होना चाहिए। किसी होनी चाहिए। अगर मुझे 1% भी रियलाइज हो रहा है कि ये कंपनी मेरी नहीं है, उसकी कंपनी है सिर्फ, तो Then you're out or he's out. तो मैं ठीक है, और वो चला गया, छोड़ो, इट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, सेकंड इज आई एम गोइंग टू बी हिज को फाउंडर, हिज पार्टनर, नॉट अ पर्सन जो अपने यहाँ पे बैठा है जिसने पैसे दे दिए। मैंने तो दिया ही नहीं कुछ भी, मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तब मैं दूंगा जब मुझे लगेगा यस अभी ये इस लेवल पे आ गया, अभी पैसे दिए जा सकते हैं। अभी जब पैसे देने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर फाउंडर को ऐसा लगता है कि यार पैसे मुझे भी ऐसा लगता था, कल मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, या मुझे 5 साल पहले भी ये लगता था मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, मुझे 7 साल पहले भी लगता था। ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने 5 साल पहले मुझे शायद पैसा मिल गया होता, मैं उसको इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज ना कर पाता जितना आज कर पाऊँ। I totally understand. तो yes, 4-5 साल तो आपको सीखने समझने में लग जाते हैं। correct. तो They're a better money manager. You exactly know how to utilize funds. तो जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि अभी मेरे पास एक पर्सन आया जो कह रहा है मैं तो देखो रोज परेशान, पर मैं कंपनी चला दे रहा हूँ। मैं देख परेशान भी हो, कंपनी भी चला। हाँ, तो ऐसे हैं? तो हाँ, ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा तो ये आते हैं। तो मेरे को देख भाई, मेरे साथ रहेगा तो तू आगे भी यही रहेगा, परेशान ही रहेगा, और कंपनी यही चलती रहनी चाहिए। एंड देन गिव मी अ प्रॉमिस कि 1 साल तक तू कम से कम चलाएगा, ठीक है। तब उस 1 साल में मैं धीरे धीरे तुझे ब्रांड करना शुरू करूंगा, जिसके लिए तुझे पैसा खर्च नहीं करना है। तुझे ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू करूंगा, तेरे लिए लोगों से मैं बात करना शुरू करूंगा, और उस 1 साल में क्या होगा, फिर तुम मार्केट में टॉप पे दिखने लगोगे। टॉप पे मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखने लगोगे। देखो होता क्या है, ओके, ऐसे समझते हैं, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जो बहुत लोग कर रहे हैं, सो ये मैं हर बार बोलता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको टॉप आदमी को सोचो कि टॉप कौन है उस बिजनेस में, अपनी हैबिटों में से, उनकी हैबिटों में से कोई 1-2 चीज़ तो ऐसी ला सकते हो, बहुत अच्छा है, नहीं ला सकते कोई बात नहीं। अदरवाइज ये देखो, अब आपके 99% लोग कैसे हैं आसपास, 1% टॉप हैं, उनको छोड़ देते हैं। 99 क्या कर रहा है, जो वो कर रहे हैं ना उनसे थोड़ा सा बेटर कर, इन ब्रांडिंग, इन प्रेजेंटेशन। तो क्या होगा, जब किसी की भी नज़र उस टॉप 1% से ऊपर कहीं पड़ेगी तो मेरा देखना चाहिए बस कितना करता है। रेस है ही नहीं है टॉप पर्सन से, रेस है अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनमें से थोड़ा सा बेटर आ जाओगे, बस दैट वी टू। Nice. That's very very interesting perspective. Good. मतलब ये मेरे को मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि you will first give services, you will take some equity, you will be the co-founder of the company, you will back the person with respect to services of 1 year's time, and once the company is performing really well, then you will start promoting and then you will start pushing, depending on the company's performance, right? Sure. Including the funding also. सो अच्छा, ऐसा रहा, सबसे हम इक्विटी लेते हैं, बहुत सालों से हम इक्विटी नहीं भी लेते हैं। अच्छा. वी कम एज ए ऑन बोर्ड लाइक अ सक्सेस फीस, Like a सक्सेस फीस। success fees. हाँ, कि हम ये से यहाँ पहुँचा देंगे, पैसा देते रहो, Oh, जब हो जाए तब दे दो। मैं आपके साथ ऑफलाइन एक बिजनेस डिस्कस करूँ. ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जब वो लेकिन अगर मुझे वो लगता है कंपनी छोटी है, नई है, अब बड़ी कंपनी है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गो विद एग्रीमेंट एंड ऑल। पर अगर कंपनी छोटी है तो जो यहाँ से यहाँ हो जाओगे ना, तो जब मुझे पैसा दोगे उतने की इक्विटी होल्ड कर दो, ताकि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं उस इक्विटी को बेच के निकाल लूंगा। सो दैट्स कॉल्ड इक्विटी एज अ सिक्योरिटी, सक्सेस फीस आई नीड इन लास्ट। अच्छा, मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह आपने इक्विटी को रखा हुआ है.
And eventually, once you get your money, or you can say once the person has got the money, you will sell the equity back to the person. सो हम लोग ना कॉर्पोरेट के लिए भी कुछ काम करते हैं, पता नहीं चलने देते लेकिन करते हैं, ठीक है। तो अगर चल गया, हाँ, नहीं 90% लोगों को नहीं पता है। Okay, what do you? सो वी डू, अब मतलब मैं बता भी दूंगा तो भी नहीं पता कर पाओगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू। चलो इन सो हम लोग 3 तरह का मॉडल है हमारा। पहला हुआ समवन इज कमिंग टू मी, सचिन मुझे सर्विसेज दे दो, पैसे ले लो, या ये काम कर दो, पैसे ले लो, जो सब भी है। दूसरा है हमने कहा या मेरे साथ फाउंडर बन जाओ, मतलब यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो मैं वहाँ पे एज ए को फाउंडर की तरह ही आना पसंद करूँगा। भाई मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ये है, तुम भी पैसा लगाओ, मैं भी पैसा लगाता हूँ, और मुझे अगर वो आइडिया पसंद है तो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनको हमने डे 1 से बनाया है, उसमें हमने पैसा लगाया सब में, तो वी इन्वेस्ट मनी, तो वो बिजनेसेस हमारे चल गए। अभी सेकंड स्टेप आता है कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है बिजनेस, तो वहाँ पे हमने सक्सेस फीस मांगी है मोस्टली, कि यार हम ना एक लेवल पे आ जाओगे तब पैसा लो, तो उस तब के इक्विटी अगर सिक्योर करनी तो कर ली मैंने। लेकिन अगर कोई कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे इक्विटी भी नहीं चाहिए, क्यों पता है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम कर लूँगा। वो तो छोटी कंपनी में दिक्कत है मुझे, कि कल को मैं सबसे लड़ता हुआ थोड़ी घूमूंगा, तो वहाँ पे हमने इक्विटी को ऐसे गारंटी ले लिया, बट इक्विटी वहाँ पे भी नहीं है हमारे पास। जिस दिन हमें हमारी सक्सेस फीस का पैसा मिलेगा वो इक्विटी वापस उसको आए। अब थर्ड मॉडल है जो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें पहला क्लाइंट अभी मिला है। ओके, सो दिस मॉडल इज लाइक अभी एक बड़ी कंपनी, आप चाहते हो कि एक ऐसा बिजनेस जो थोड़ा सा, जिसमें कोई भी एक बिजनेस लेते हैं स्टार्टअप की तरह से। अब मैं उसे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा एज ए स्टार्टअप, या मैं अपने किसी पर्सन से स्टार्ट कराऊंगा, तो मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को बुला सकता हूँ, मैं डेटा भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं हायरिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज भी हायर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास क्या रिस्ट्रिक्शन है? और उस कॉर्पोरेट से बोलूँगा कि तुम मुझे एज ए इन्वेस्टर फंड कर दो, बट एक्चुअली प्रोजेक्ट उन्हीं का है। रियली ऐसा हो रहा है? ये आपका ये तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉडल। सो लाइक इट्स अ वेरी यूनिक मॉडल। इट्स नॉट अ यूनिक मॉडल, वी हैव कैपेबिलिटी टू बिल्ड थिंग्स, टू डेवलप थिंग्स, वी डू लॉट्स सो ऑफ। फाउंड दिस गैप एंड यू क्रिएटेड अ या क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम बना हुआ है। अभी आप मेरे को बोलो सचिन एक काम करो यार, एक मुझे कंपनी बना दो जिसका हैदराबाद में ऑफिस हो, मुंबई में ऑफिस हो, चंडीगढ़ में ऑफिस हो, दिल्ली में ऑफिस हो, बिकॉज मेरे पास 4 ऑफिस है, मैं 4 ऑफिस में एक एम्प्लॉय बैठाऊंगा, कहूँगा तुम्हारा ऑफिस। तो मुझे सचिन एक काम करो, उस कंपनी में मेरे को सेल्स पर्सन चाहिए, मेरे पास है, मुझे यार आई टीम चाहिए, मेरे पास है आई टी थी, ठीक है, अगले दिन सब कुछ खड़ा कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे मार्केटिंग टीम दे दो, मेरे पास है। मेरी कंपनी को प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, P2P प्रोडक्ट है, मेरे पास ढेर लोग हैं, मैं कल इवेंट कर रहा हूँ, उस इवेंट में तो मैं बड़े से आधार से प्रमोट अगले दिन खड़ा कर दोगे आप? हाँ, तो मैं आई कैन डू डेट, आधार कार्ड से भी फास्ट है तो सर यस। तो मेरे लिए क्या है कि वी बिल्ड बिजनेसेस जिनको हमने एक महीने में हमने रेवेन्यू लाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी हमने एक रिसेंटली हमने नेक्स्ट हैपन को बिल्ड किया। अब हमें क्या दिख रहा है नेक्स्ट हैपन में, सर कई सारे गैप तो हमें ऐसे दिखते हैं। जैसे नेक्स्ट हैपन हमने जो बनाया है सब प्लेटफॉर्म, लाइक आपको इवेंट करना है, आप मुझे बताओ, आपको फंडिंग भी हम करेंगे आने वाले टाइम में, आप इवेंट करते हो तो आपको हम सपोर्ट भी हम करेंगे, आपको टीम भी हम देंगे, आपको जगह ढूंढनी है, आपको कुछ और करना है, आपका इवेंट लॉस में ना जाए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए, क्या चाहिए आप हमें बताओ, वी विल गिव यू एवरीथिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है इन यूएस, नाउ दे वांट टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, और या एक इंडिया कंपनी जो यूएस में सेटअप करना चाहती है। मेरे पास दोनों के ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। सो वी हैव अ पार्टनर विद यूएस, चाइना, मतलब लॉट ऑफ कंट्रीज वी बिकम अ पार्टनरशिप एंड वी ओपन ऑफिसेस, और सम प्लेसेस वी हैव अ लाइक इंडिया चाइना ट्रेड, वी आर अ पार्टनर फॉर इंडिया, दे हैव अ चाइना पार्टनर हमारे पास वहाँ चाइना में। इंडिया यूएस से trade.com करके वेबसाइट है, सो वी दैट्स ऑल्सो और काइंड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, बट उनमें हम लोग नेटवर्किंग वगैरह करते हैं, बट जो क्लाइंट्स आते हैं उसके लिए हम लोग इंडिया में हम लोग देखते हैं। अभी एक कंपनी है यूएस से इंडिया में आना चाहती है, अब उनको सपोज करो कुछ मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पे उनको लाइसेंस लेके काम करने में 2 से 3 साल लग जाएगा, चाहे वो इंडिया कितना ही भले के लिए काम कर रहे हो, चाहे कितने भी रोजगार देने वाले हो, पर बाबुओं के सामने निकाल के दिखाओ, मैं निकाल पाता है। ठीक है। नाउ आई विल मेक द सेम सेटअप इन 6 months। वाओ, क्योंकि मैं तो लोकल हूं ना, मैं तो बाबू से बात कर सकता हूँ ना। उसकी कंपनी को प्रॉब्लम है, टाटा को प्रॉब्लम हो सकती है, रिलायंस को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बड़े ब्रांड को प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, और उनके खुद के भी एग्रीमेंट साइन रहते हैं। आज HDFC बैंक एक्सिस का एम्प्लॉय हायर नहीं करता है, आपस में पैक्ट है ना, ICICI में नहीं करता है, ठीक है, कल को लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब यू क्रिएट दीज कंपनीज और यू ऑलरेडी हैव अ कंपनी, इसके अंदर आप एक नहीं, मैं अगर कल को कोई हमसे कहे कि सचिन मुझे ना ये बिजनेस बना के दो,
हम दे देंगे, सक्सेस फीस पे दे देंगे। राइट स्टार्टअप मतलब फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 0 to 100 पूरा बिजनेस खड़ा करके उस देंगे। बंदे के नाम पर। नहीं नहीं, पहले नाम पे अपने पे करेंगे, उसको एज इन्वेस्टर लेंगे, फिर उसी के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। तो पता करके बताओ कैसे पता करोगे? हमें तो फंडिंग मिली वहां से, हमने दे दिया उसको बिजनेस, ओके ओके ओके, हम रह गए फिर माइनर शेयर होल्डर। तुम्हें कैसे पता चला ये हमने किया है उसने किया है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। We are a venture studio. We are a factory of setting up businesses. So we create an ecosystem accordingly. ऐसा कोई कर नहीं रहा है, मैं ऐसा मेरे मेरे पॉट मतलब नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, ये शार्क टैंक जो करता है, जो मतलब क्योंकि ये शार्क टैंक भी बिजनेसेस सेटअप करता है, इज इट अ शैम और इज इट जेन्युइनली हेल्पिंग द फाउंडर्स और यू कैन से द इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर? रियलिटी बताओ मेरे को, रियलिटी मतलब ग्राउंड रियलिटी बताओ, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही ऐसा मतलब बिकॉज देयर आर सो मेनी बिग बिग चैनल्स। Tell me one thing. Shark Tank is not a in India. I'm not talking about others जो जहाँ से वो इंस्पायर्ड हो चले, ठीक है। अब आप 10-20 लाख रुपए का फंड कर रहे हो, एंड डू यू थिंक सीरियसली 10-20-30 लाख रुपए इज गुड नंबर टू एनी बिजनेस? मैं तो कहता हूँ अपना मैं XYZ काम कर रहा था, आज 10-20 लाख ना पता नहीं चलेगा। ढंग से प्रमोशन करने में निकलोगे ना मार्केट में, पता नहीं चलेगा। बट या it's a good for those people, those who are some branding. Shark Tank is a branding game, as a marketing game. It's a sales gimmick. आप वहाँ जाओ, एक्टिंग करो, एंड जैसे एक्टिंग सिखाते होंगे ही, मुझे ऐसा लगता है जैसा फाउंडर बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, बट मेरे को समझ नहीं आया। जितनी भी शार्क टैंक में कंपनियाँ आई हैं, उनका सबका रिटर्न कर लो और एक बार बैठ जाता है, और फिर वो बताना कि कितने सक्सेसफुल हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें तो 1 रुपये का भी फंडिंग हमने तो उठाया नहीं अभी तक किसी कंपनी, मे बी 1-2 कंपनी में अभी हम फंडिंग उठाने वाले हैं। जो भी हमने फंड लिया फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ऐसी थोड़ा बहुत करके सब बूस्टअप है। बट मे बी अब मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इसको ग्रो करेंगे चीज़ों को। तो फंड्स के लिए भी अभी वी गॉट लॉट ऑफ प्रपोजल्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, अभी हमारा बात होना शुरू हो गया, अच्छे इन्वेस्टर्स आर कमिंग, बट नन ऑफ VC टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज नहीं आ रहा है कोई भी, और चाहिए भी नहीं। VC टाइप ऑफ मीन्स की नॉट VC फॉर्म, मतलब VC टाइप मतलब जैसे ये लोग होते हैं 10 लाख भी दे दिया, 20 लाख भी दिया, नाम ही नाम है उनका। आपको मैं इतने सारे VC से मिलाऊंगा, दे आर नॉट गिविंग फंड जितना वो शोर मचा रहे हैं। फंड तो 4 कंपनी को दे रहे हैं, पता चल रहा है वो 4 उन्हीं की हैं, उन्हीं के आइडियाज थे, सब कुछ वैसा ही था, ठीक है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इज रियली फंडिंग इज हैपनिंग? एक बार डेटा निकालो, आपको पता चलेगा कि कितने सारी तो ऐसी फंडिंग्स हुई है जो सिर्फ फंडिंग है ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इट्स जस्ट अ ब्रांडिंग। इज आर यू श्योर? मतलब वो उड़ते उड़ते खबर आई थी, somebody from the investor community or somebody who invests, he says that Shark Tank promises on the channel that हमने इतना दिया है, बैकएंड के अंदर they deny कि नहीं मेरे को नहीं आइडिया है, बट जैसे मूर्खों को फंडिंग मिली है, कुछ को मैं जानता हूँ, तो उनको सच में मिली है नहीं मिली है मालूम नहीं, वो तब भी फटे हाल थे और आज भी फटे हाल है। तो आप बोलना चाहते थे नहीं मिली होगी? और वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते, मैंने तो उससे पूछा भी नहीं है। तो 2 लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, तो दोनों को मेरी हालत उनकी पहले भी मुझे बताती, इतनी ग्रोथ होती हुई दिख नहीं रही ना, दिख रही है, करेक्ट। मतलब तुमने कुछ भी ग्रोथ होती हुई दिखी। उस टाइम पे उनका जरूर एक बज आया, इनकी उस पे एकदम से रिएक्शन आ गया। अब पता है ग्रोथ क्या हो रही है? मेरी एक ना मीडिया कंपनी है, वो कह रहे सर हमें ना इवेंट में ना कुछ शार्क टैंक में गए हुए उनको बुलाना चाहिए, इन्फ्लुएंसर है बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा ठीक है बुला लो। क्या सर वो पैसा मांग रहे हैं? किस बात का कि वो शार्क टैंक में चला गया, मत बुलाओ। फ्री में आ रहा है तो ठीक है, मैं कहा हम एक्सपीरियंस सुन लेंगे भाई इसका। कह रहे पैसा मांग रहे हैं सर। मैं तो वो तो बड़े बिजनेसमैन नहीं बने क्या? ना शार्क टैंक फंडिंग भी मिल गया, क्या सर पैसा मांगने आ रहे का, लाख रुपए में बिक रहे हो तुम। तो कर लेने दो भाई। तो सिचुएशन खराब है, मतलब अधिक मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है कि पता तो होगा आपको, इतना डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं। क्या करे, मुझे इतना पता है कि आज के डेट में ना इन्वेस्टर फंडिंग दे नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए फंडिंग दे रहा है। करेक्ट। तो जितना उसकी फंडिंग ब्रांडिंग हो जाए, जो रियल इन्वेस्टमेंट फर्म से जैसे AIFs हो गए, वो सब हो गए, इतना करोड़ों रुपए इधर से उधर घुमा रही है लोन के नाम पे, उसके नाम पे, उनकी कोई न्यूज़ ही नहीं है। और जो छोटी सी फंडिंग देते हैं कि इतने करोड़ की वैल्यूएशन पे इतना उनका मार्केट में शोर होता है, अलग से एक पूरा आर्टिकल छप के आता है,
मेरे को शार्क टैंक कभी कभी बोलता है ना, जो मतलब कोई जाता है भंडारे में दिखाते कि देखो हमने कितना बड़ा नेक काम कर दिया, और ऐसा दिखाते कि देखो शर्म नहीं आती है। कोविड के टाइम पे मतलब वो दिखाते हैं ना, पब्लिसाइज करते हैं दैट चीज वी हैव डन सच ग्रेट वर्क, वी आर ट्राइंग टू यू नो अप। अरे तुमने फंडिंग ही तो उठाया, अब क्लब से तीर मार दिया। तुमने कौन सा, अरे कौन सा तुमने 50 एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो हर बार, कौन सा तुमने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, कौन सा कोई एक रियल इम्पैक्ट ला दिया? मैं ये नहीं कहता मैंने कर दिया, बट देखो मैंने फंडिंग भी नहीं उठाया है, और अगर कल को उठाऊंगा भी डेफिनेटली आई विल डू समथिंग कि जिसमें हम लोग कुछ नंबर्स बना के दे सकें, डिलीवर कर सकें। पैसा बहुत मेहनत से कमता है। कैसे लाख रुपए भी किसी को दे दो आप ना, जिसको आपको पता ना हो बिजनेस कैसा चलेगा, कितना दुख लगता है अगर वो बिजनेस को डुबा दे, ठीक है। और फंडिंग लेना, कुछ फाउंडर्स की सोच इतनी खराब होती है, लाइक जैसे फंडिंग मिल जाए तो बस वो फंडिंग के पीछे हैं, जैसे फंडिंग से बिजनेस कर देंगे, कुछ नहीं। तुम अपने पैसे की अगर वैल्यू नहीं करना जानते हो, तुम दूसरे की बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। मेरा क्वेश्चन अगला ही था, व्हाट वुड यू प्रेफर बिटवीन बूटस्ट्रैपिंग वर्सेस वीसी फंडिंग? तो आपका जो सोच और जिस तरीके से आपने बोला, मेरे को लगता है पूरा बूटस्ट्रैप ही होती है उससे। वी बिलीव इन बूटस्ट्रैप, व्हाई? वी बिलीव इन बूटस्ट्रैप। और हम लोग जो, हम तो ग्रोथ भी कराते हैं कंपनी की, हम तो पूछ रहे हैं भाई प्रोजेक्शन बना ले, ओके सो यू आर गिविंग मी प्रोजेक्शन कि यार मैं ना अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए मुझे ये चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि मैं ना कंपनी को बड़ा करने के लिए अगले दिन एक फैक्ट्री डाल देता हूं, इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी। भाई एक से एक काम चलाते हैं ना, वी हैव अ वन फैक्ट्री, या फिर ऑलरेडी तेरे पास जो है इससे काम चलाते हैं। अभी तेरे को ब्रांडिंग के लिए कुछ चाहिए, मेरे पास बना हुआ है, तेरे को आईटी के लिए कुछ चाहिए, मेरे पास है, तो इन सब पैसा मत लगाना। तो जितने प्रोजेक्शन है उसमें से आधी चीजें तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आधी या 70% कर लूंगा, 30% तू खुद कर ले, ठीक है। सो तेरी लाइफ से 70% जाएंगी चीजें जिनकी वजह से अब तेरी ब्रांडिंग बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगा, तू भी तो कुछ पड़ेगा ना, तेरे पास भी अप्रोच आएगी ना। आज मेरे पास लोग कॉल करते हैं, सचिन कोई नया बिजनेस बता, मेरे पैसे लेके आए हो। हाँ, नहीं ऐसा तो बहुत है ऐसा, लाइक अब तो हमारे पास में लाइक हर 2-3 महीने में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो पैसा लेके बैठा होता है, एंड ही सेड कि हम बता क्या करेंगे, बट वो क्या करेंगे पे ही आते हैं मेरे पास। जैसे अभी एक है मेरे बड़ा लंबा रिलेशन से, कहीं घूम के आए, हम लोग मिले नहीं थे, गांव से एक दूसरे जानते हैं, 5-6 साल से ही नोज मी। तो मोस्टली लोग मेरे पास वही आ रहे हैं जो मेरे पुराने थे, मतलब नए लोग से ज्यादा पुराने लोग बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। नंबर वही लोग जानते हैं, पुराने टाइम से सबने देखा है, जीरो सब कुछ बनाया है। तो नाउ तो ही कम किया मेरे पास ना, ये करीब ऐसा रिटायर्ड होके आए थे वो जॉब से, आर्मी से। सो मेरे पास इतना भी 50-60 लाख रुपये पड़ा हुआ है, व्हाट आई हैव टू डू। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हमारा ना इवेंट्स का काम बहुत अच्छा हो रहा है, मुश्किल से 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी वो खरीद ले तो जो इवेंट में लगता है, ये सब तामझाम फैब्रिकेशन, ठीक है। मैं हर बार 5-6 लाख रुपये देता हूँ, और मेरे बहुत सारे होटल्स में जाना है, मैं ही तेरा सेटअप करा देता हूँ, वो बहुत सारी जगहों पे इवेंट वालों से मैं तेरी बातचीत करा देता हूँ, और सब जगहों पे लगा लेना। महीने का कुछ नहीं है तो 20-25 लाख रुपए के लिए काम करेंगे, खूब कम भी बचेगा तो भी जो है 10-15 लाख रुपए बच जाएगा, करोड़ रुपए के आसपास में सारा काम हो जाएगा। ये सब खरीद लेते हैं। सो अभी हमने कोई नया बिजनेस थोड़ी बनाया, वो इकोसिस्टम की जरूरत थी। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारे बिजनेस ऑटो मोड पे हमारे डेवलप होते जाते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में रहते हुए इकोसिस्टम क्रिएट करते चले जा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जरूरत है। और सस्ता भी पड़ता है, बिकॉज इट्स रिपीटिंग एवरी टाइम, इट विल नेवर गो, इट विल नेवर डाई। तो एंड वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग जो कल पैसा कमाए। सही बनाया वैसे अपना इकोसिस्टम, मतलब जैसे दूध अंडा ब्रेड ये कभी खत्म नहीं होंगे, पूरे टाइम आपने वही बना दिया। So, अभी हमें लगा, फिर पहले B2B बनाया, फिर हमें लगा यार हम इंडस्ट्री वाइज बनाएंगे, फिर हमने इंडस्ट्री वाइज शुरू कर दिया। अभी हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में पूरा हम हेल्थ केयर घुस गए, लाइक हेल्थ केयर का मीडिया, हेल्थ केयर का ये, हेल्थ केयर की इन्वेस्टर्स, हेल्थ केयर के डॉक्टर, सबसे हमारा कोऑर्डिनेशन शुरू करना, और हेल्थ केयर कंपनीज, हाँ अभी वही चालू है। सो हेल्थ केयर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके मॉडर्न मेडिकल के डॉक्टर्स एंड उनके जो सेटअप्स को देखते हैं, या आप दूसरे ऑल्टरनेटिव होलिस्टिक भी देखते हो? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उठा के सबसे पहले नेटवर्किंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। आधी प्रॉब्लम सॉल्व, आधा तो लोग हमें सिखाते हैं, we learn a lot people फिर उसके बाद में उसी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनको फिर हम ये देखते हैं हमारे पास क्या है जो हम उन्हें दे सकते हैं। That's always I see first. So whenever I meet someone, I always think मैं क्या दे सकता, then मुझे चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। If your business model is like this कि जो सामने वाले के पास है वो बहुत ज्यादा है या कम वैल्यू उसकी मान रहा है, वो आप उससे ले लो, और जो आपके पास में बहुत ज्यादा है जिसकी वो वैल्यू बहुत ज्यादा मान रहा है वो उसको दे दो। ऐसा अगर कस्टमर फाइंड कर लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा सकते हैं? ओके, सो एग्जाम्पल के लिए यू कम टू मी, आपने, अब मेरे पास में ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल के लिए कपड़े की फैक्ट्री है। आपने कहा सचिन मेरे को ना एक बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास ना पैसे नहीं है, फिर भी बिजनेस शुरू करना है, बट मैंने देखा मैं यार
तो क्या है, तुम्हें किन्हीं कपड़े का बिजनेस शुरू करना है। मैं कहा फिर करना क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। यू सेड मैं ना एक बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, मेरे कपड़े बहुत अच्छे बन सकते हैं, स्किल्स है मेरे पास में, पैसा नहीं है। पैसा नहीं का मतलब करोड़ों रुपए नहीं है। अरे ठीक है 10-20 हज़ार रुपये हैं, कंपनी बना ले, आ जा बात कर लेते हैं। और उसने कंपनी बना ली। मैं एक काम कर चलो कोई बात, फैक्ट्री चला जा, जो डिज़ाइन है वहाँ पे दे देना। शुरू के डिज़ाइन में मेरा बंदा तेरे मिंत्रा पे तेरे को सेटअप कर देगा, या जहाँ पे भी वहाँ पे सेटअप कर देगा। शुरू में फैब्रिकेशन जो ऑफिस वहाँ पे फैक्ट्री मेरी फैब्रिक पड़ी है, उस फैब्रिक से जो जो बना सकता है बना ले, ठीक है। ट्रायल कर ले, तेरा MVP निकल गया, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हो गया। अभी तेरे को समझ में तो आ गया ना, तेरा कपड़ा बिकेगा नहीं बिकेगा, बिक रहा है, हाँ बिक रहा है, चलो तो आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मेरे लिए बहुत आसान है। अभी मैंने उसको क्या दिया, मैंने सब कुछ दे दिया उसके हिसाब से। तो लेकिन मेरा क्या गया, मेरे सच में कुछ नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री है ना, चल रही है ना। सो उसके हिसाब से मैं सब कुछ दिया, उसी मेरे बेस पे ही उसने कंपनी बनाई है। नाउ इफ आई आस्क हिम कि मैं और तू दोनों मिलकर काम करते हैं 50-50, विल ही से नो? ऑब्वियसली नहीं कहे। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कहता है यार मेरे को ना सचिन एक्स बिजनेस करना है जो कि दूसरी कंपनी को सपोर्ट करेगा, कोई भी B2B का बिजनेस, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी को लेता हूँ B2B, हेल्थ केयर, एनर्जी, या फिर अपना फैशन लाइफस्टाइल। अब उसे B2B कंपनीज को सपोर्ट करना है। सपोज करो आपने कहा कल को मेरे को यार कि ना IP बनाते हैं, या एक मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या एक बिजनेस मीडिया का कुछ बनाते हैं। मैंने क्या कहूँगा, देख भाई ऑफिस है, बैठ जा, साइट ये बना देगा, वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगी, और क्या चाहिए, 4 लोगों से मिलना है, माइक और वो सब हमारे ऑफिस में रखें, नहीं है चल ये मंगा देते हैं, और कुछ चाहिए 1-2 इंटर्न हायर कर ले, पहले चेक कर ले, और दोनों मिलकर साबित कर। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 0, यू स्टार्ट। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करवा देना, स्टार्ट हो गया। लो रेजिस्टेंस मॉडल है। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट पे आते हैं, स्टार्ट करा दिया, 0 पे स्टार्ट हो गया। अब MVP के लिए अब बाद में आपको क्या चाहिए, आपको मान लो आप B2B का भी इवेंट कर रहे हो। सो साल में हम लोग बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इवेंट्स, अलग अलग IPs हैं। इवेंट्स करने का फायदा क्या होता है सर? सो मैंने इवेंट्स नहीं करता, मैंने तो IPs बनाए थे अपने लिए। जैसे मैंने एक MSMEs कंपनीज में चाहिए थी छाटने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो मैंने एक भारत में और नाम से एक IP क्रिएट करी, और मैंने कहा भाई सब लोग यहाँ पे आओ मिलो। अब उसमें हमने नहीं देखा कौन CA है, कौन हमारी जैसी सर्विस दे रहा है, कौन किसी और की दे रहा है, सब आ जाओ, सब आके मिलो, बात करो। देख देते हो इतना बड़ा हो गया। इस बार MSME मिनिस्टर आए, अगली बार हम लोग कम से कम 2 दिन का प्लान कर रहे हैं, और वो 2 दिन का जो प्लान कर रहे हैं वो 2 दिन का मिनिमम कॉस्ट विल बी 5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होगा 2 दिन में। 2 दिन का, वाह। इस बार भी 1 करोड़ से ऊपर का था बात, ठीक है। ये जो होने वाला भी नहीं, जो हुआ था अभी 27 जून को हमने किया था, अगले साल भी 27 जून को है, 30 अगस्त वाला। और 30 तक उसमें दरसा अनदर IP। तो हमने फिर एक फाउंडर क्लब बनाई, जिसमें हम सिर्फ इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, और उन फाउंडर्स को बुलाते हैं जिनको सच में फंडिंग मिला है, और हम बोलते हैं बताओ अपनी स्टोरीज। ओके, तो नाइस। और हैंड पिक पीपल, और वो बाकी आपके जो अटेंडीज है वो सब देखेंगे। और हमने एक्सपोज भी लगा दिए। एक्सपो में वो स्पॉन्सर्स, अब स्पॉन्सर तो उसमें आ गए। हाँ, हम लोग उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाते, थोड़ा बहुत लॉस में ही रहते हैं हर बार। तो उसका रीजन ये है कि हम लोग अपनी कंपनीज भी प्रमोट करते हैं ना, हमारे पास 25 कंपनीज है, तो बीच बीच में वो भी प्रमोट होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। बट कंपनीज बाहर की भी आ गई, तो उसको थोड़ा बड़ा बनाना आसान हो जाता है मेरे लिए। अब हम लोग पहले जहाँ हम लोग सोचते थे 100-200 आए, अब हम 100-200 सोचते नहीं, हम सोचते हैं कम से कम 1,500-2,000 लोग आए, 2,000 कंपनीज आए। तो अब हम लोग 2,000 कंपनीज का इस बार भी प्लान कर रहे हैं। 2,000 कंपनीज एक्सपो में और उसमें आएंगी, और कम से 500-700 लोग कॉन्फ्रेंस में आएंगे। अभी वो सब लोग जब आ रहे हैं, नाउ यू बिल्ड अ बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आपने मान लेते हैं एक B2B का एक बिजनेस बनाया, तो अब आपको और क्या चाहिए, MVP हो गया आपका क्लियर, अब आपको सेल ही तो करना है। जाओ खड़े हो जाओ स्टेज पे, बताओ अच्छा है तुम्हारा, लगा दो एक्सपो, मैं लगा के दे दूंगा, उसमें जो पैसा आएगा हम लगा देंगे, प्रिंटिंग करा के बढ़िया से तुम्हें फट करा के पूरा लगा के दे देंगे। टीम चाहिए 4 लोग और खड़े करने, कर देंगे, ठीक है। अब बेचे दिखाओ, वी गिव यू अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा कितना पैसा लगा, 0। अब तुमने कपड़े का बना लिया, तुमने अपना डिजाइन दिखाया, सब कुछ, तुम तो बहुत बड़े डिजाइनर थे, बिक गया मिंत्रा पे। अब क्या करना है, अभी उसको और ब्रांड करना है। मेरा फैशन शो भी है, फैशन इंडिया फॉरम में हम पार्टनर हैं, वी इन्वेस्ट 50%। सो उसको हम लोग, उसका फैशन शो हो रहा है, बाकी सब बड़े मीडिया हाउसेज से बात किया है, वो सब उसमें आ रहे हैं, बड़े ब्रांड से बात किया है, वो सब आ रहे हैं। सो तुम भी दिखा दो अपना यार। अच्छा, बार बार आप मतलब इट्स कॉन्स्टेंटली री-इन्फोर्सिंग द ब्रांड इन द पर्सनस हेड, ये है, ये एग्जिस्ट कर रही है हर जगह। सो वी डू 3 things very common. One is continuously building a brand image in a different ways, मतलब जो नॉर्मली नहीं हो सकता, बहुत मतलब ऑर्गेनिक वे में, ऑर्गेनिक वे में, और बहुत अलग अलग फोरम्स के अंदर वही सेम ब्रांड आएगा, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये यहाँ पर भी आया। That's the first thing we do.
सेकंड इज अभी आप देखो ना, हम लोग पैसा लगाते हैं लाइक उन जगहों पे। अगर हमारा इवेंट हो रहा है, अभी पूरी दिल्ली एनसीआर में होर्डिंग लगा हुआ है, तो लगाएंगे ना हम होर्डिंग। भाई होर्डिंग लगाने से दिखता है ना, क्योंकि आप कितना भी ऐड दे दो उस पे, सोशल मीडिया पे सभी दे रहे हैं, पर हमारा होर्डिंग लगा हुआ है, सामने वाले को समझ में आता है कि ये सीरियस लोग हैं, ये पैसा खर्च करते हैं। ड्राइव करने के टाइम पे दिखेगा होर्डिंग। ठीक है, ड्राइव करने दिखेगा होर्डिंग। लास्ट वाले इवेंट में हमने पूरा एफएम सब पे लाए थे हम, ठीक है, इस बार भी लेके आएंगे। सो वी डू वट एवर वी डू ऑन क्वालिटी बेस, क्या टॉप लेवल पे जाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो मुझसे बहुत बड़े हैं, कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टर्स, अब मैं उनको भी कुछ दे सकता हूँ। सर आप आके बोलो ना, क्योंकि मेरे से बड़ा नहीं है सर, मेरे से, मैं क्वालिटी ऑडियंस भी लाया हूँ। क्वालिटी ऑडियंस लाने पे पूरा फोकस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे भी तो बिजनेस चाहिए ना, मेरी कंपनीज को बिजनेस कम मिलेगा जब क्वालिटी की ऑडियंस होगी। मैं बच्चों को थोड़ी बिठा दूंगा। दिस इज द बिगर डिफरेंस। पीपल कॉर्पोरेट्स लाइक आवर इवेंट्स मोर देन एनीवन, या फिर बड़े ब्रांड्स हमारे यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस अच्छी होती है। अब ऑडियंस अच्छी क्यों है? उनके हिसाब से ऑडियंस अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑडियंस इसलिए अच्छी है क्योंकि मुझे तो अपनी सर्विसेज अपने ब्रांडों की बिकवानी थी वहाँ पे। तो अगर ऑडियंस ही मैं खराब ला के दूंगा तो मेरे तो ऑर्गेनिक आएगा ही नहीं ना। तो मुझे ऑडियंस अच्छी लानी है, उसके लिए मैं पूरा काम करूँ। देयर इज अ वेरी हाई बार, बिकॉज आपने ऑलरेडी 25 कंपनीज को तो डाल रखा है, तो फिर यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी द बेस्ट, और आपका बेस्ट टीम रखनी है। करेक्ट। सेकंड इज अभी तो खैर नहीं दिखा सकता, बट वी हैव अ लाइक लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हेन वी, शुरू में हमने बहुतों के साथ नहीं किया, बट अभी हम लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि लॉन्ग लिस्ट, कि भाई तुम ना इसमें फॉर्म को भरो सर, क्योंकि मेरे शायद मेरे वेंचर स्टूडियो में भी एक दो कंपनी फिट हो जाएगी जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे अच्छी लगेगी। तो हमने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म बनवाया है कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्या टर्नओवर है, कितना वो है, और क्या दिखना चाहते हो, ब्रांड कैसे करना चाहते हो, वो सब क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि इसको मैं और एक्चुअल क्या सपोर्ट दे सकता, इसके लिए विन विन कहाँ हो सकता है। क्या मेरी उन 25 कंपनियों से कोई कंपनी है जो उसके साथ मिलकर काम कर सकती है, जहाँ दोनों का कोई फायदा हो सकता है। तो मैं उसको बता दूँ, सर आपको मैं ना इस फाउंडर से मिलवाऊंगा, इससे मिलवाऊंगा, इससे मिलवाऊंगा। मेरी टीम पहले बताती है। कोई इन्वेस्टर आ रहा है उससे भी मिलवा देंगे सर, कोई ये आ रहा है उससे मिलवा देंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है ना, तो हमें पता है। तो इससे क्या होता है, मेरा जो ऑडियंस है ना वो ऐसा हो गया है। एक पर्सन है, ही इज़ वेरी गुड गाय, तो एक कंपनी है, रीड फर्स्ट के ऑनर है। तो अभी मैं लास्ट टाइम जब उनसे मिला, ही केम फ्रॉम पुणे। नाउ ही सेड, ही कॉल्ड मी कि यार जितना बढ़िया ऑडियंस तुम्हारा मिला ना, अभी मेरा एक बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा है उनसे, वो कह रहे हैं हम फिर से आना चाहता हूँ मैं। ही इज कमिंग फ्रॉम पुणे। और भारत पे का जो इवेंट होता है पूरे इंडिया से लोग आते हैं उसमें। वी गिव अ क्वालिटी, भाई ऑडियंस आपको क्वालिटी मिल जाएगी। अदरवाइज नेटवर्किंग आप आए किसके लिए रहे हो? क्वालिटी ऑडियंस के यार, क्वालिटी लोग चाहिए आपको, आसपास के लोग ऐसे चाहिए आपको। वरना तो हर तीसरी कंपनी आजकल इवेंट करने के नाम पे इवेंट चल रहा है। इवेंट कंपनियों के इवेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बिजनेस वाले, वो लोग ज़्यादातर इवेंट ये वाले क्यों करते हैं कि हीरोइन बुला दी, ये बुला दिया, और उनके बिजनेस इवेंट सक्सेसफुल नहीं होते? बिकॉज दे आर नॉट अ बिजनेसमैन, दे डोंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ए फाउंडर, दे आर अ इवेंट कंपनी। उन्हें अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। वो अपना बैठ के वो प्राइजेस दिलवाते हैं, तो अब वो प्राइस के नाम पे, कि प्राइस जिस पे बिक जाए, ठीक है, प्राइस के नाम पे, हीरोइन के नाम पे, किसी के नाम पे, और जिसको प्राइज मिल रहा है वो पैसा देता है, क्या को प्राइज दिलवाएंगे। हाँ देता है। हमने भी एक बार किया था, हमारी एक कंपनी ने ऐसा, मैं मना किया उनको, मैं मत किया करो। तो इसमें So what is different in your events vis-a-vis us? Because मैंने बाकी इवेंट्स तो देख रखे हैं। हम लोगों को यहाँ पे एक भी प्राइज वाला अवार्ड सिस्टम बिल्कुल जीरो है। क्या होता है उस इवेंट के अंदर? तो एक इवेंट के तो वी आर वेरी सिंपल। आप एक्सपो लगाओ, ठीक है, जो एक्सपो लगा रहा है, वी ट्राई टू गैदर क्वालिटी ऑडियंस जिनको एक्चुअल में यहाँ आके फायदा हो, ठीक है। हम इवेंट में पहले से ही क्लियर पता चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात रहती है, आई विल नेवर से नो टू एनीवन कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आप इवेंट में आए हो, यू जस्ट टेल अस योर प्रॉब्लम, So it's like a, वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू। so how is the flow of the event? होता क्या है? फ्लो क्या होता है? क्या बताना नहीं चाहोगे? इवेंट में आना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ऐसा है क्या? You want to keep it a secret? नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, कोई सिंपल फ्लो रहता है जो नॉर्मली, देखो इवेंट में आए तो स्टेज पे बहुत सारे कोशिश होती है कि बोरिंग लोग ना बोले, कम लोग बोलें, और जिस चीज़ के लिए लोग आए उसी चीज़ को कनेक्ट करें। So there are keynote which are from industry experts. कोशिश ये करते हैं कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को कम प्रमोट करें, ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोट का एक अलग टाइम दे देते हैं, 15 मिनट में होगा बस। बाकी कोशिश ये करते हैं कि एक्चुअल में आप अपनी वो चीज़ें बताओ जो इनको नहीं पता है। एग्जाम्पल की, एक इन्वेस्टर आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं, सर आप ये बताओ कि आप क्या देखते हैं फाउंडर में, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, Right. ताकि इनको पता चले। एक ऑलरेडी किसी कंपनी ने फंडिंग उठा लिया तो उसको हम बता रहे हैं, सर आप बताओ ना कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे, फिर आपने उन्हें कैसे हैंडल किया। अब स्टॉक एक्सचेंज को बुला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, सर आप बताओ ना आईपीओ कैसे ला सकती है कंपनी छोटी ली, टेल दीज थिंग्स।
सो बेसिकली उन वाले डाउट्स को सॉल्व करते हैं जिसके आंसर उनको कहीं पे भी नहीं मिले हैं, एंड सम वही फ्लो में वही चलता है, डन दैट। ओके, वही चलता है फ्लो के अंदर। क्लैरिटी हो गया, मतलब इट्स लाइक क्लैरिटी काइंड ऑफ एन इवेंट, बिकॉज फाउंडर्स को कभी वो डायरेक्शन नहीं मिलता। और बहुत सारे फाउंडर्स जोश जोश में तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मेंटर, कोच और आई वुड से दैट इकोसिस्टम कह लो, वो चीज़ें मिलती नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग चैलेंज। अच्छा मिल भी नहीं है ना तो थोड़ा ही लेना, ज़्यादा मेंटर के पास बैठोगे ना, क्योंकि वो तो होता है नॉलेज से ओवरफ्लो बेचारा मेंटर, ठीक है, तो वो इतना भर देता है तुम्हारे दिमाग में, जितना तुम्हें जरूरत है उतना लो, फिर उड़ जाओ वहाँ से, ठीक है। ज़्यादा कंसल्टेंट और मेंटर्स ना ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, किसी भी फाउंडर के लिए, ठीक है, कम मिलो, ये फैक्ट है। ज़्यादा नेटवर्किंग मीटिंग्स में कभी भी जो, अच्छा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, ऐसी मीटिंग्स होती ना यार, हर हफ्ते मिलेंगे, हर हफ्ते हम लोग डिस्कस करेंगे 20 लोग और कुछ कर लेंगे, अरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्किंग के नाम पे वो खुद का ही प्रमोशन चले जा रही हैं। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, नेटवर्किंग उसको बुलाया था, उसकी हेल्प करनी थी, नहीं अपने आप को प्रमोट करवा रहे, खुद का बैच लगवा के लोगों को बुलवा रहे हैं, लिंक्डइन पे वो उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज आपको मिलेंगी, दैट्स नॉट अ कम्युनिटी, दैट्स नॉट अ कम्युनिटी, आप एंड दैट्स नॉट अ राइट ऑफ नेटवर्किंग आल्सो। नहीं है बिल्कुल भी अपना ही बैंड बजा रहे हो, अपना ही ब्रांड करे जा रहे हो। ऐसी कम्युनिटीज से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कम्युनिटीज बहुत अच्छी होती हैं ऐसे लोगों के लिए कि यार मैं तो इंश्योरेंस में काम करता हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक ये, तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छा है, उनको नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सच में एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर कौन है यार? अ गाय हु इज जनरेटिंग आइडियाज, प्रॉब्लम आई, फिर देखी, फिर सोची, फिर उस पर काम किया। तो मेंटर के पास जाओ, जाके पूछो ये वाला काम कर रहा था, ये प्रॉब्लम आई, अब तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, और उसका एक्सपीरियंस वर्स्ट हो सकता है। भाई हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत सिंपल रहता है। अभी जो मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं 5 साल पहले ऐसा सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता था, पर जो अब बन गया ये 5 साल पहले अगर मैं ऐसा ही सोचता जितना आप सोचता हूँ तो मैं ये कभी बना ही ना पाता। ज्यादा नॉलेज ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स में रिस्क लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सिचुएशन कई बार होती है। अभी जो एचपीएफ बन गया है ये शायद दूसरों के लिए वैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, हमें कॉपी करके हमारे जैसा बनाने की कोशिश करें, यस डैम ट्रू। हमसे बैटरी बना सकते हैं, हमसे खराब बना सकते हैं, हमारे जैसा नहीं बना सकते। रीजन जो सिचुएशंस हमारी आई, हमने कोविड में बहुत कुछ सीखा, कोविड में बहुत सारी चीजें हमने अलग तरह से की, और कोविड दोबारा नहीं आ रहा है 100 साल तक नहीं आता। हाँ ही है। तो सो हमारी कंपनी उसकी वजह से थोड़ा सा हमें टाइम भी मिला और हम वैसा बना पाए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि एक फाउंडर के लिए वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो एक्चुअल में जरूरत है। कहने को तो इंक्यूबेशन सेंटर्स सेट किया, हम भी तो वही कर रहे हैं। नो दे आर नॉट डूइंग। इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, या कोई बोल रहा है इंक्यूबेशन सेंटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम हो गए, ठीक है, वो नहीं कर। एक्सेलरेटर प्रोग्राम, एक्सेलरेटर और ये ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर देखे मैंने इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स। तो देखो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है हर किसी को, जैसे आप पूछे थे कि फंडिंग मिलता है क्या, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आप ट्रेनिंग लेके फंडिंग उसके लिए जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट देखो बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। बाहर की दुनिया आप ना हर चीज को आप इस बात से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए इंक्यूबेशन में चले जाओ, इंक्यूबेशन में कल आपको मंत्री साहब अवार्ड दे देंगे, मिल देंगे आपसे, ठीक है। कल आपको 5 स्टार में रोका जा रहा है सरकारी खर्चे पे किसी जगह पे ले जाके, परसों को आपको भारत मंडपम में आपका कौन सा इवेंट होता है साल में जो बड़ा होता है, स्टार्टअप महाकुंभ हो रहा है, उसमें आपको जगह मिल गई फ्री में अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के। उसके बाद भी इंक्यूबेशंस का 1% का रेशियो नहीं है सक्सेसफुल करने का, और उनको पैसा भी दिया सरकार ने, फिर भी 1% सक्सेस रेशियो नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक्सेल्स बनाए, कॉपी किए, सब कुछ समझाए गए। इवन वहाँ पे जो मेंटोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटोर खुद भी सक्सेसफुल नहीं है, और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो उनको एक स्टेप आगे ले जाने का नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर वो खुद एक अकेडमिक है। अकेडमिक वाले गलत नहीं होते, सही होते हैं, पर देखो बाहर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया रोज़ बदल रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद में वो लोग उन चीज़ों की वैल्यू भी नहीं करते। अब उनको ये पता है कि उनको लगता है इवेंट का मतलब यही है कि हम चले गए वहाँ पे नाम दिखा दिया, अवार्ड हो गया। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तुम्हारी जैसी भीड़ थी, इसीलिए तुम कभी ग्रो नहीं कर पाए। ऐसी भीड़ वाले इवेंट में जाओ ना जहाँ पे करोड़पति लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, या वो तुमसे बेटर थॉट प्रोसेस के लोग आ रहे हैं, वहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा। अब तुम अपने ही जैसे लोगों में घूम रहे हो। अभी मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आ रहा है, क्योंकि देखो जिसको आप मिल गए या आपकी जैसे एक इकोसिस्टम मिल गया, उसका तो दिमाग एकदम बढ़िया है, खुल गया। क्योंकि भैया सचिन आए हैं तो फिर डेफिनेटली भैया इट्स लाइक दिस दैट समबडी विल बी बेलिंग यू आउट। सचिन नाम ही बड़ा लकी है। बट
because I'm talking about the master blaster Sachin Tendulkar. After that, Sachin Sharan for startup in. नाम ही मेरे घर वालों ने उसी बेस पर रखा। जब मैं पैदा हुआ ना तब सचिन की पहले स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे चिट्ठी आया मेरे घर वालों के पास, आर्मी फादर और आई एम रिटायर्ड मेरे फादर। Same. तो अच्छा चिट्ठी आया, उसमें नाम एक मुंबई की एक मैडम थी, आंटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। एंड आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट बट You're playing your own cricket here. You're hitting really well. Okay, so let's talk about mental health. Okay, and one question which constantly comes up: what are the unspoken emotional and psychological challenges, or you can say the struggles which a startup founder generally faces? 90% founders lose their health in their first 2-3 years. Even me also. तो कोई अलग नहीं है। क्या होता है इसमें? सो सबसे पहले तो देखो, इट्स अ इनडायरेक्ट प्रेशर What kind of pressure? ऑफ सोसाइटी। बोल तो दिया है कि फाउंडर्स हैं, फेलियर हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम फाउंडर बन गए, बिजनेस चालू कर लिया, अब हम जॉब से भी चाहे कम वाली ज़िंदगी जीते रहेंगे, जॉब से भी ख़राब ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन हम लोग अब वो काम बंद नहीं करेंगे, दोबारा जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी को बता चुके हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन 10, 15, 20, 50 जो भी है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ की भी। ठीक है, प्रोमिसेस वादे बड़े बड़े कर चुके हैं, और कई बार तो हालत ये है कि लोन भी ले लिए हैं, उनकी EMIs भी चल रही हैं, पैसा भी उठाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर कमिटमेंट्स ख़राब हो रही है। तो जो हमने अगेन वही, जब हम लोग कुछ बड़ा सोचते हैं और हम कैपेबल हैं और हम फिर वो कर नहीं पाते किसी भी रीज़न की वजह से, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। फैमिली में भी लड़ाई हो सकती है, होती है। ठीक है, बहुत सारे, जो मैं पहले बोल रहा था, सो आई एम सो मच कूल गए, बट वो कूलनेस ना चली जाती है। हाँ, एक लेवल के बाद 2-3 साल के बाद में यस हम लोग अडॉप्टेड हो जाते हैं, ठीक है, बट फ्रस्ट्रेशन यस ट्रू रहता है। और इसीलिए सिंपल पॉइंट इज कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जो इस फेज से गुजर रहे होते हैं, ऑलवेज उनके पास में फंड्स की कमी हमेशा, ऑलवेज, कोई भी कितना बड़ा वो है वो हमेशा रहेंगी। तो वो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती, जैसे ज़्यादा पैसा आएगा, और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो आप सच फाउंडर हो भी नहीं, आप गलत इंटरप्रेन्योर हो। क्योंकि कम पैसे से बड़ा बिजनेस बनाना ही बिजनेस है, और कम पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन करके। अब आपके अकाउंट में ही ज़्यादा पड़ा हुआ पैसा, आप उसके बाद में बिजनेस बना रहे हो, यानी कि आप वेस्ट कर रहे हो पैसे। अकाउंट में पैसा रखना ज़्यादा अच्छी बात नहीं, पैसा उतना ही रहना चाहिए कि फ्लोर पैसे का अच्छा रखना चाहिए। अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है जरूरी नहीं। हाँ, आप मल्टीमीडिया कंपनी बन के बात अलग है। फॉर अ स्टार्टअप लाइक कंटिन्यूस ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, एक रियल एस्टेट में एक पर्सन था, ही टुक मी 10 लाख रुपीज़ एंड माई स्टार्टिंग टाइम, जब मतलब बिल्कुल स्टार्ट किया था, और उसके बाद पैसे नहीं दे रहा है, 10 लाख रुपए भी रख लिए हैं और प्रॉपर्टी भी, ऑफिस भी नहीं दे रहा है। 6 महीने हो गए हैं, गुंडे खड़े कर रखे हैं, बिकॉज दे डू रियल एस्टेट सक्स इन नोएडा। Did you recover money? हाँ, वो मिल गया। अगर हम अपना पैसा निकाल पाएंगे तो 3 साल कोर्ट केस चलते हैं ना, यहाँ तो लंबे। तो पर अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देके, पैसा तो हम निकाल लेते हैं। ठीक वो सब पहले सीखा था। ठीक है, तो बट हर फाउंडर के लिए ये सब स्टक हो जाता है। तो और ऐसे एक आध आदमी मिल जाएगा उसको, हर एक की लाइफ में 1-2 लोग होंगे जिन्होंने ऐसे उसकी लंका लगा दी होगी। तो कुछ लोगों के एम्प्लॉय ऐसे मिल जाते हैं, पार्टनर्स ऐसे निकल आते हैं, बिकॉज पार्टनर साथ में सही चीज़ सेटिंग नहीं की स्टार्टिंग में, वो फ्रेंड्स थे आपस में, या दोनों के सेम स्किल्स थे। नेवर एवर हायर सेम स्किल पार्टनर, आपस में चैलेंज करते रहेंगे। Complementary skills वाला। I had the taste of that which you're talking about. तो मेरा तो बहुत क्लियर रहता है, देखो भाई मेरे को ये आता है, ये करूँगा। मैं वो नहीं करूँगा जब तक मेरे को पता, वो मेरे को आई विल नॉट डू दैट थिंग विच आई डोंट नो। तू करो, मैं वो करूँगा जो मेरे को ये सब रहता है। अच्छा, फाउंडर्स की लाइफ फिर वही है, ट्रस्ट भी जल्दी करना पड़ता है हम लोगों को। तो पर ट्रस्ट तो कर लेते हैं, फिर ना उससे एग्जिट करना नहीं आता। इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग, इमीडिएट टेक एग्जिट। तो ये सब चीज़ें फिर टेंशन क्रिएट करती हैं एंड पीपल सफर। पीपल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वहाँ पे धोखे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए कोई मेरा पार्टनर बनता है, या कोई मेरा एम्प्लॉय आता है, या मेरा कुछ और होता है, तो एक स्टार्टअप के पास में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं। इमीडिएटली वो सब कुछ उसको दिखा देगा, सब चीज़ें उसके सामने रख देगा। इज इट आउट प्रैक्टिस? नो, बट वी डू, ऑप्शंस कम होते हैं मेरे पास। व्हाई डज अ पर्सन डू दिस?
सारे ऑप्शन, सब कुछ, सारे सब कुछ बोल देता, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ना, टीम उतनी बड़ी नहीं है, मेरे पास सिस्टम उतना बड़ा नहीं है, हर चीज़ संभालने के लिए लोग नहीं है। और जैसे ही जब लोग बढ़ने लगते हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि अब उसको ऊपर के लेवल पे ही उतना बताना है, हर एक को नहीं बताना है। उसके बाद 2-4 ट्रस्टेड बंदे बन जाते हैं। देखो मेरे कितना टाइम हिसाब से लगता है ट्रस्टेड बंदे को पहचानने में, या मतलब हाउ मच टाइम डू यू थिंक अ पर्सन जितना ज़्यादा लोग उसमें लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ट्रस्टवर्दी है बंदा? हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स, लाइक व्हाट? even okay, so when you are spending small money और कुछ भी काम कर रहे हो, या तुम खर्च कर रहे हो वो खर्च कर रहा है, या कोई काम इस तरह का हो रहा है, या कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन वे में आया है, हाउ ही इज बिहेविंग, इसे बिहेवियर मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर के पास में पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा दिक्कत है, सो एक के पास में नहीं है, मे बी ही इज स्पेंडिंग, लेकिन क्या हुआ, द डे ही डिमांड फ्रॉम यू, जिसको ज़रूरत ऐसा लग रहा था उसे, अब उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसको धीरे में दुख लग रहा है, उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, या अलग से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, रीजन में पैसा ही नहीं निकाल कुछ भी ऐसा कर रहा है। सो डू वन थिंग, सबसे आसान तरीका होता है, वेन एवर समवन कमिंग्स टू यू, ट्रस्ट ब्लाइंडली, immediately, and huge way. If he's a wrong person, he will do some of the mistakes as early as he can do. And if you find he's doing mistakes, do not give another chance. Fire him, cut off him, don't have a partnership. It's much better. हाउ अर्ली, मतलब टाइम लाइक Early है मतलब immediate. मेरे तो सब याद आता है, मैं तो कल सब कुछ देता हूँ। मतलब वो पता कैसे चलता है, बिकॉज टाइम भी तो लग अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा आते यहाँ ही खराब करेगा 2 दिन में। जो करेगा कर देगा, थोड़ा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, पर निकल भाई तो ठीक है। ये जितना जल्दी ट्रस्ट कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। सब कुछ इसको दिया मैंने, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये बंदा सही है कि नहीं है, और अगर सही है, सही करता जाए तो और अच्छी बात है। पर धोखे खाने में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, धोखे खाते रहो, ऐसे गुड प्रैक्टिस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। हाँ, जितने जल्दी खाओगे तो यू विल फाइंड कि यार अभी ये नहीं करना है। अच्छा, वो फिर कांटा भी लग जाता है, ये लोग नहीं चाहिए, ये लोग चाहिए। अच्छा, फीमेल आ रही है तो ये 4 क्वेश्चन पूछने, मेल आ रहा है तो ये 4 क्वेश्चन पूछना है, स्टूडेंट आ रहा है तो ये 4 चीज कंफर्म करनी है, और अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है ये 4 चीजें बता दी है, ताकि कई बार क्या होता है, चेकलिस्ट दे देना। हाँ, कई बार क्या होता है वो बनती चली जाती है, कई बार क्या होता है आप गलत नहीं होती, वो भी गलत नहीं है, सिचुएशंस ऐसी हैं। आप उसने कुछ और एक्सपेक्ट कर लिया, आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया, आपको लगा था ये तो आ रहा है वहाँ बैंक से, इसके बाद सब करोड़ों क्लाइंट होंगे, करोड़ों का पैसा ले आएगा मेरे लिए, करोड़ों का मेरा प्रोडक्ट बेच देगा। वो नहीं है भाई उसके पास। वो तो वो बैंक में जाके रोज लड़ के बैठता था, चुपचाप से काम करता था ना, नहीं है उसके पास। आपने गलत सोचा ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसका बेटर तरीका यही है कि जितना जल्दी हो सके ट्रांसपेरेंसी के साथ में, इफ वी कैन टेल, तो मच बेटर। अच्छा, एक और चीज, ये हमारा जो इंडिया है, भारत, स्टार्टअप फेल होने के बाद इतना जज क्यों करते हैं? वेयर कंट्रीज लाइक यूएस, दे सेलिब्रेट। इनफैक्ट देयर इज अ बुक बाय बेन होरोविट्ज कॉल्ड हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। वो कहता है सिलिकॉन वैली के अंदर वो लिटरली एक फाउंडर जब फेल होता है ना, तो बाकी फाउंडर्स उसको पीठ थपथपाते हैं। कहता है कि तूने बड़ा सही सीखा इसके अंदर, अब तू देख क्या करेगा। मतलब दे आर वेरी एनकरेजिंग। दैट्स व्हाट ही शेयर्ड इन हिज बुक। तो मेरा सवाल है, भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ मोदी जी बहुत प्रमोट भी करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, मित्रों हमने ये करा है वो करा है, बट अगेन माइंड मतलब थोड़ा सा ना, मतलब ये एक तो मेरा एक स्टार्टअप इंडिया को लेके भी सवाल था वैसे, लेकिन हाँ, स्टार्टअप इंडिया प्लस इंडिया फील पे बात करते हैं। हाँ ओके, तो जितने भी लोग, हाँ, अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है और यहाँ तक पहुंच गया है, आपको लगता है पहुंचेंगे? पता नहीं। तो भाई सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर वालों से तो बहुत ज्यादा है। पहले तो यार लिफ्ट में कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आसपास सर घुमा के देखो, सबके तो मुंह बने होते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। पहले तो ये सुधार ले, और जब ये सुधार होगे तो एक चीज पाओगे कि ये मुंह क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये सब लोगों ने मान लिया है आपस में कि ये सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सबने माना हुआ है, ठीक है, और दूसरा आदमी बेवकूफ है, ये सब मानते हुए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इंडिया में जो स्टार्टअप फेल होता है, वो ये मानता ही नहीं कि मुझसे क्या क्या गलती हुई, वो ये रियलाइज ही नहीं करता है कि मैं कौन कौन सी गलती से फेल हुआ, वो ये नोट डाउन ही नहीं करता है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैं करता तो उसकी वजह से हो जाता। वो क्या मानता है पता है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए फेल हो गया, उसने ऐसा कर दिया इसलिए फेल हो गया, वो बिजनेस किया इसलिए फेल हो गया, उसने मेरे को पैसे दिया इसलिए फेल हो गया, मेरा पार्टनर मेरे को धोखा दे इसलिए फेल हो गया। भाई तू गधा था इसलिए तू फेल हो गया।
तो एक काम कर, तू लिस्ट बना। अगर तू यही बोलना शुरू करे कि मैंने ना ये मैं फेल हो गया, ये मैंने स्टार्ट किया था, ये 10 गलतियां की थी, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, ये 4 चीजें मेरी सही थी, ये मुझे करनी चाहिए थी, अगली बार मेरे को ये नहीं करना है। नो डेफिनेटली कन्वर्सेशन इज डिफरेंट। अभी मैं मेरे से आके ये सब बोलेगा कोई तो मैं टीपी थपथपाऊंगा ही ना, अच्छा क्या यार अब तो कोई 4 चीजें मिल गई ना, अब आगे मत करना। इंडिया में मानते हैं क्या? यहाँ पे बात करो, यहाँ पे अपनी गलती हो जाए तो ना माने हम। There's a mindset problem. This is one thing which I observe. यहाँ पे इंडिया में तुम्हें पता है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं मानता हूँ, अगर किसी को ऐसे को मैं मानता हूँ, तो वो चाहे कितना भी गलत क्यों ना निकल जाए, मैं उसके लिए लड़ लूंगा, पर मैं उसी को सही मानूंगा, चाहे वो वहां से वो देश को बेचा है वो। तो इंडिया में तो इतना वो है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया है, मैंने कुछ मान लिया है, तो वही सही है। ये नॉर्थ ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। मतलब जितने लोग मैंने यहाँ पे देखे, वहाँ देखो ऑब्वियसली बात है, मैं साउथ में कम रहा हूँ, ठीक है, या बहुत कम गया तो मैंने वहां पे, लेकिन साउथ के लोग आई लाइक वन थिंग, दीज पीपल दे आर वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट, टू एक्सेप्टिंग ऑल्सो एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, इज गुड थिंग ऑल्सो। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि ज्यादातर नॉर्थ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो साउथ को माल बेचते हैं और नॉर्थ को नहीं बेचते हैं। क्वालिटी कस्टमर्स ही वहीं पर ही है, क्वालिटी कस्टमर वहाँ पे है, वहीं पे। वो चिक चिक नहीं करेगा, ठीक है, सीधा बात करेगा। ओके, जो जितना मेरे स्टेट्स का एक्सपीरियंस है, आसाम जैसा मैंने बताया बहुत ठंडा है, आसाम नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ठंडा है, बहुत स्लो चलेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा पैसा भी उधर से मिल जाता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर ही है ना। आई डोंट नो, मतलब जो भी है आसाम में काफी से बिल्डिंग जाते हैं। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए, अभी तो बिजनेस चाहिए। तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जो है ठंडा माहौल है। जैसे ही आप आओगे कलकत्ता, वहाँ के लोगों को लगता है कि सब बेवकूफ हैं, हम पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो ऐसी बातें करेंगे। आपको कलकत्ता में नॉलेज ओवरडोज है। हाँ, ओवरडोज है। और कलकत्ता में ना वो बंगाली आपको पता है क्या कहेगा, जैसे आप नॉर्थ इंडिया से मिलेगा या किसी से मिलेगा ना, बहुत मनी माइंडेड है, मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, वो शायद संत वाले उससे ऊपर निकल गए, तो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। कि मैं उनके साथ बात कर रहा जितने भी लोगों के साथ, हमें ये आता है, हमें ये आता है, हम इतने बड़े, एंड दे अगेन आर सेटिस्फाइड, वो बुक पढ़ने में सेटिस्फाइड है, वो उस तरह से अपना लाइफ जी रहे हैं। तो क्या होता है, बड़ा हार्ड हो जाता है इस जगह बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस अच्छा चलो वहाँ पे मान ले 5% लोग 10% लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि टीम तो मुझे वहीं से चाहिए ना। अगर वहाँ पे हर तीसरा आदमी बहुत सिंपल सोच रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो हार्ड वर्किंग है वो फिर इधर उधर भागता है, क्या चलो नॉर्थ चलो, दिल्ली चलो, बैंगलोर चलो, कहीं और चलो, ठीक है। सो उनका बड़ा सिंपल है, थोड़ा ठंडा माहौल है, लेकिन इज अ गुड कंज्यूमर। अगर वो कुछ आपसे कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स अ गुड कंज्यूमर, ठीक है। कोलकाता हुआ आपका, थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं इधर, मेरे को यहाँ के फाउंडर्स में बिल्कुल एक अलग बात लगी, हैदराबाद। आई लव दैट सिटी। क्या खास बात देखी? 2 चीज़ मुझे अच्छी लगी। पहला, हैदराबादीज के बारे में, दे आर वेरी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, लाइक नॉर्थ का आदमी हर चीज़ उसको यहाँ पे ना फ्री में मिल जाए, कब पैसा जाए ही ना, और किसी को बेवकूफ बना के अगर निकाल लिया तो अरे यार देख बना लिया बेवकूफ, कितना बढ़िया। ठीक है, हैदराबाद में कुछ एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, दे मे बी नॉट लाइक अस, दे मे बी नॉट ओके कि वो काम करें ना करें, क्योंकि यहाँ के उनके भी एक्सपीरियंस ऐसे होंगे, और मे बी हमें टाइम लगे अभी हैदराबाद साथ। बट आई लाइक वन थिंग, दे आर गुड पीपल, दे अंडरस्टैंड बिजनेसेस, they want to do, also they believe in supporting others, like गुजरात। हैदराबाद जैसा ही सेम माहौल मुझे गुजरात, हैदराबाद और गुजरात मेरे लिए दोनों एक जैसे लगे। लेकिन जब मैं मुंबई आता हूँ तो मुंबई इज वेरी सिंपल, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे हर तरह का मिक्स ब्रीड है। एंड अगर आप छोटा सा भी वहाँ पे रिलेशनशिप्स पे काम करना आता है आपको, इट्स वेरी गुड फॉर यू वर्क ऑन रिलेशनशिप्स। यार उस ऑफिस में जान पहचान करा दे, वहाँ पे मिल लेता हूँ, हाँ मैं कराता हूँ, मैं बताता हूँ, तो मैं जल्दी से कलेक्ट करा देखूँ ईजिली, ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू मराठी ऑल्सो, तो आजकल चल ही रहा है, तो और आसानी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। एंड when you are doing something in Pune, you do it straightforward, like Pune, Bangalore, very like मैं तो कहता हूँ पेशाब जाने के लिए भी ऐप बना दोगे तो बेंगलोर का आदमी समझता है मेरे को टेक से व्यू में मैं इसी से जाऊँ, तो दे विल चूज वेरी हार्ड वे ऑल्सो, तो बेस्ट टेक पर्सन के लिए, ठीक है। तो वो लोग अपने आप को
टेक में एक लेवल सुपीरियर मानते हैं, एक लेवल मानते हैं। सुपीरियर मानते तो और वो ऐसी ऐसी चीजें भी यूज कर रहे होंगे। कई बार पता है टेक क्यों फेल हो रही है ये लोग, क्योंकि कई बार ये लोग वो सब टेक में बना रहे हैं जो हैं। जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता है। अभी आदमी आपके कह रहा है मैंने ऐप बना दी, अरे पहले बिजनेस बना लो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले बिजनेस बना लो, आप वेबसाइट सब बाद में बनाना। ऐप, वेबसाइट, इवेंट्स, ठीक है। ऑल आर एनेबलर्स। ठीक है। अब बिजनेस बना लो। अब बिजनेस में अब ये देख लो कि मिल के कोई भी काम बहुत कुछ चीजों को छोड़ के जो टेक सपोर्ट की तरह की चीजें बन रही है दूसरे बिजनेस को, टेक को, उन बिजनेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें तो आप मैनुअली भी करके देख सकते हो। तो आपको बिहेवियर समझ में आएगा, चीजें समझ आएगी। किसी भी बिहेवियर, ह्यूमन ट्रांजेक्शन को फास्ट और इजी करने के लिए टेक बनाना है, ना कि किसी टेक के हिसाब से एक बिजनेस मॉडल बनाना है। बिल्कुल सही है। तो कंपनीज के सॉफ्टवेयर कब फेल होते हैं? जब वो एक सॉफ्टवेयर ले लेती हैं या बना लेती हैं और फिर उसके हिसाब को बिजनेस को ढालना शुरू करती हैं। बिजनेस बना होना चाहिए उसको सॉफ्टवेयर के साथ। तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग, बट ठीक है। इट्स अ वेरी तो बेसिक। हाँ, तो अलग अलग जगहों का अलग अलग एक्सपीरियंस यही है। और मेरे हिसाब से दिल्ली एनसीआर इज अ गुड मार्केट। चाहे मान लो मैं यहाँ रहा हूँ, और यहाँ पे पे बहुत धोखे भी बहुत खाए हैं, उसके क्योंकि बाद यहाँ भी आपको पे- दिल्ली एनसीआर पसंद। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जिसने बिजनेस कर लिया वो सब जगह कर लेता है। ये तो गाड़ी चलाने वाला है, जिसने दिल्ली में गाड़ी चलानी वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अच्छा नहीं लेगा तो वही है, यहाँ पे जिसने बिजनेस कर लिया ना, और अगर वो जल्दी सक्सेसफुल है तो उसको पता कहाँ क्या कैसे नहीं करना है। now it makes sense to me why you're saying तो मेरा इकोसिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हमें पता है क्या देख करना है ना, तो वैसा रहता है। आपने मतलब पल्स पकड़ लिया है यहाँ के लोगों को, मैंने मतलब आपने वो क्रैक कर लिया है, यू क्रैक द कोड फॉर द। देखो आसान क्या होता है, जहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि कहीं भी घटिया लोग या अच्छे लोग या बुरे लोग होते हैं। देखो कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिचुएशन के साथ। दिल्ली के लोग लेकिन इमोशनल होता है। हाँ इमोशनल, अरे सब जगह इमोशनल है। अब तुम्हें सब जगह लोग मिल जाएंगे, तुम ढूंढो सही, तुम्हें जो नॉन इमोशनल स्टेट है वहां भी इमोशनल लोग मिल जाएंगे। अब होता क्या है, सबसे आसान कहाँ होता है, जब आपको लग रहा है ना किसी जगह पे काम करना बहुत मुश्किल है, या यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गलत है, मतलब गलत का मतलब परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ठीक है, चीटर फ्रॉडर ज्यादा है, वहां पे तो और अच्छा काम करने का तरीका है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है सब लोग फ्रॉडर है। तो तुम्हारे जैसे शायद, अगर तुम जेन्युइन हो ना, तुम्हारे जैसे शायद वहाँ पे 10 या 20 या 30 कुछ तो होंगे ना, वो बेचारे भी परेशान होंगे, उनकी परसेंटेज जो मर्जी हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उनको ढूंढना है, एंड वो बंदा तुम्हें कोई छोड़ नहीं जाएगा। उसको पता है तुम तो जेन्युइन हो। मतलब 100 में से 80 फ्रॉड होंगे, 20 जेन्युइन होंगे, और उन 20 को अगर आप मिल गए तो आप कभी छोड़ नहीं देंगे, तो लॉयल ऑडियंस और लॉयल बेस। तुम्हारे उस बेस में ना बड़ी मुश्किल से वो नहीं हुई, तो 20 पे फोकस कर लेते ना। अगर ऐसा लग भी रहा है तो गुजरात में कितना वो है, गुजरात में कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं लोग, कम्युनिटीज वाले बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अगर पैसा मर भी गया ना तो आके वो सपोर्ट कर देंगे, ये बोल के यार बाद में दे दियो, वो भी कहते हैं बाद में दे दूंगा, वो चल जाएगा, क्योंकि उनको पता कहाँ जाएगा। तो वो कहते हैं ना, आंखों में शर्म तभी आती है जब उसको ये हमेशा डर रहता है बगल वाला क्या कहेगा, आस पड़ोस वाला क्या कहेगा। तो ये दिल्ली के कल्चर में थोड़ा सा रहा, और दिल्ली में नहीं, हर उस जगह पे रहा जहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से लोग जो है आ जाते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कहेगा दूसरे सामने वाला, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पे आप देखोगे कम्युनिटी बेस रहे हैं, अभी हैदराबाद है, लोकली लोग जाता है, लोकली ग्रो हुए हैं, कुछ गलत करेंगे तो दूसरे को पता चल जाएगा। आप यही चीज़ आप देखोगे जाके दुबई में ज़्यादा है, वी गॉट चीटेड बाय वन कंपनी, सो बिकॉज अगेन उन्हें पता है क्या कर लेगा हमारा। जहाँ पे ये वाली फीलिंग आ जाएगी या तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। और ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हो, कि पता नहीं कोई तरीका नहीं है क्या ड्यू डिलिजेंस करने? हाँ है ना, है। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली लास्ट उसके कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस क्या कंपनी थी, क्या चलाया था, क्या अब तक करता था, किस तरह के लोग उसके नेटवर्क में हैं। और शुरू में तो हमें किसी के साथ में भी जेल होने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली 2-3 महीने लगते हैं पता करने, तो वो नेचर से पता चलते हैं। और कई बार क्या होता है, आदमी गलत होता है, फिर भी हम उसके साथ काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वो गलत जो था वो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मे बी एक टाइम के हिसाब से बदल भी जाती है। हर आदमी यार अलग होता है। है ना, यंग टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए उसके साथ, वो नहीं कर पाया, उसकी 2 गलतियां थी, ठीक है, लेट मी गो नाउ विद, हाँ बट नेचर अगेन हुई, और उसके रेगुलर हैबिट्स में हर चीज़ दिखती है। आई थिंक ये ईजी हो जाएगी हर एक के लिए। जब आप एक काम करो ना, आप कितने लोगों से मिलते हो, लाइक आई हैव अ कॉन्टैक्ट मोर देन 7,000 इन माई फोन, एंड मैं लगभग सबसे मिला हूँ। आपका फियर ही खत्म हो गया, आपको कुछ वही नहीं है मतलब, एंड यू हैव मेट एवरीवन।
At least once. हाँ मैं वंस मिला वो मेरे पास में मेरा वही नंबर है बहुत टाइम से, लाइक मेरा एक और नंबर है, लाइक 2008 से जो नंबर है वो भी मेरे पास है, वही दूसरा नंबर है, वो खैर मेरे ऑफिस में यूज़ होता है तो वो चल रहा है कंटिन्यूस टू, और ये मेरा दूसरा नंबर है। आई नेवर चेंज माई नंबर्स एंड सब लोग हैं, और मैंने ना ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही राइट हूँ, बहुत बार गलत हुआ है, मतलब मेरे साथ में सिचुएशन आती है, बट आई डू सिंपली लाइक आई कॉल द पर्सन, आई पिक अप द कॉल और टेल देम दैट गलत हो गया यार, अभी तक मैं सही करूँगा इसको, एंड विल सही करेक्ट इट एंड डू इट। सो देखो कई बार क्या होता है, आधी प्रॉब्लम्स आपकी तब सॉल्व हो जाती हैं जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, यू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, राइट। एंड सेकंड जो आपको बहुत ज़रूरी है करना, if anything happen or any wrong thing happen or any commitment you have done not deliver, pick up the phone or directly call to the person and tell that ऐसा हो गया है, ऐसा मैं करना चाहता था, ऐसा मैं करूँ, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो। Worst person or worst people are who cut the phones, continue cut the phones, don't want to talk when they promise to something। हाँ, अगर मैं कोई प्रॉमिस दिया फिर मैं कट कर रहा हूँ तो मे बी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू यार, कुछ साइको लोग भी मिल जाते हैं ना मुझे, तो मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा बहुत जल्दी होता है, मैं आर्काइव तो ऐसे करता हूँ लाइक कि मेरे को लगेगा ना एक सेकंड भी ये बंदा बेकार परेशान कर रहा है, उठाया आर्काइव अब डालता रहा मैसेज, ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। बट अगर किसी के साथ में कोई कमिटमेंट किया है, कोई काम हो रहा है, कुछ भी है, आई जस्ट पिक अ फोन इन इवन अ फर्स्ट रिंग ऑल्सो, नहीं काम हुआ कोई बात, आई एक्सेप्ट। इंटरेस्टिंग। मैं अब थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आ गया हूँ, ठीक है ना। इफ समवन हु वांट्स टू बिल्ड अ लेगेसी एंड नॉट जस्ट बिजनेस, व्हाट इज द माइंडसेट व्हिच दैट पर्सन शुड हैव? आज अगर लेगेसी क्रिएट करना शुरू करना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए जो प्रॉब्लम्स पहला, जहाँ पे आप ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे आप ना बहुत इजीली आप गिव एंड टेक वाले फॉर्मूला को काम कर सकते। गिव एंड टेक अगेन, व्हेन आई सेड टू यू कि मिलके एक बिजनेस करते हैं एंड आई ऑलरेडी हैव अ सेटअप, तुम्हारे लिए तो गिव एंड टेक हो गया, तुम्हें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे जैसा एक पर्सन मिल गया जो बड़ा बन सकता है, जहाँ पे तुम्हारी जितनी लेगेसी क्रिएट हो रही मेरी भी उतनी क्रिएट हो रही, जितना फंड तुम बनाओ, इस बिकम ईजी। दूसरा, बड़ा बनना इंपॉर्टेंट है। पहले बड़ा बनना और पैसे वाला होना दोनों अलग चीज़ें हैं। वंस यू आर अ बिग पर्सन, आइदर यू आर विद द ब्रांड नेम फेम व्हाट्सएवर, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मनी कम्स। मैं फिर से बताता हूँ, पैसा कम मिलेगा चलेगा, ठीक है। आप एक दुकान खोल के आप 1 करोड़ का गल्ला करते हो पूरे साल, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर और लॉस मेकिंग हो, पूरे इंडिया में तुम्हारे हाहाकार है, मे बी यू आर मच बेटर पर्सन देन दैट 1 करोड़ का गल्ला बात, क्योंकि तुम कभी भी 1 करोड़ की बात कभी भी बोलते हुए, ठीक है। सो क्रिएट अ बिग थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आपको अब 3 काम करना है। पहला, comment the best portion which you liked about this video. Number 2, subscribe to this channel because अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो हम valuable guests नहीं लेकर आ पाएंगे. So the responsibility is yours to subscribe the channel. And number 3, share this video with someone who needs to listen to this.